Alright, सलाम, शलोम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। रुस्तम शाह लाइफ के एक और शो में आप सबका स्वागत है। आज एक बहुत ही स्पेशल शो है और मेरे साथ आज होंगे हाइपर एक्टिव जो मेरे को होस्ट है, और आज हमारे साथ होंगे प्रोफेसर आवी लोब। आवी लोब, अभी आपको मैं उनका इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। ये एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, तो अभी हम सब मिलके इनके साथ इनका स्वागत करते हैं। So, ladies and gentlemen, my guest today is Professor Dr. Abraham, or commonly known as Avi Loeb, from Harvard University. He is an American theoretical physicist who works on astrophysics and cosmology. Professor Dr. Loeb is the Frank B. Baird J. Junior Professor of Science at Harvard University. He had been the longest serving chair of Harvard Department of Astronomy, founding director of Harvard's Black Hole Initiative, and the director of Institute for Theory and Computation within the Harvard Smithsonian Center for Astrophysics. Professor Loeb is a fellow of the American Academy of Arts and Sciences, the American Physical Society, and the International Academy of Astronautics. In July 2018, he was appointed as the chair of board on physics and astronomy of the National Academies, which is the academy's forum for issues connected with the fields of physics and astronomy, including oversight and their decadal service. A very impressive resume, sir, and it is truly an honor for us that you are on our show, sir. Thank you very much. Thanks for having me. I should say that all these labels are not so important. For me, science is the privilege of maintaining your childhood curiosity, and I pretty much see my career as a continuation of me as a child, asking questions about the world and trying to answer them. Yes, sir. You are almost like a rock star nowadays. When I was searching you on internet, I think you have done over like 1,000 different interviews in the last couple of months or year. I don't know, it was because of the COVID-19 or people simply like to hear you. It was a combination of things. I had a book that came out about 6 months ago called Extraterrestrial. I believe that in India, it's possible to get the British edition. It came out in 25 languages worldwide, and it was bestseller in many countries. And there were, indeed, as you mentioned, since it appeared, there were more than 1,000 interviews that I had to do. And indeed, the pandemic allowed it, because I would start at 8 a.m. and finish by 7 p.m. And there were back-to-back interviews throughout the world. And that was possible only because I didn't have to travel to studios and distant places in order to have these interviews. Yes, sir. And also internet is such a blessing for us, especially in this time of age. I mean, I never wondered that one day I will be sitting here and talking with you. But thank you very much once again. This is, I don't know if you can see that, but this is the book he was referring, Extraterrestrial, the first sign of intelligent life beyond Earth. And it is one of the New York's on the bestseller list. I just recently bought it, so please go and check out his book. It is a wonderful book. You will love it. Thank you. And indeed, I should say that for me, even though it was a very problematic time for all of us, the last year and a half, it allowed me to focus on creative work. And usually I wake up at 5 a.m. in the morning and go for a jog of about half an hour in the company of birds, ducks, rabbits, and wild turkeys. We live in the suburb, not outside of a city. And I enjoy that very much. And I've been writing, I finished not only this book, but another textbook on a similar subject, the search for extraterrestrial life. And every week I publish an essay in Scientific American. Okay. Now you talk a lot about the extraterrestrial life and life in the universe itself. Now, my first question would be, as we know, there are like thousands, or not thousands, maybe millions or billions exoplanets out there. And we already discovered, I think, confirmed planets, maybe a couple of thousands already. So this
this notion that there's so much real estate out there in the space, but we haven't, I would say, why, in the context of Fermi paradox, where are all these alien civilizations? They should be buzzing, like every second around this solar system, but we don't see that. What is the reason for that, sir? Right. So Fermi, about 70 years ago, went to lunch at Los Alamos. He was a very famous physicist, Enrico Fermi, and they were talking about extraterrestrial life. And he asked, well, if there are intelligent beings out there, why don't we see them? Where is everybody? Which is a very natural question to ask. But it's a bit presumptuous because when I met my wife, for example, she had a lot of friends that were waiting for Prince Charming on a white horse that would show up and make them a marriage proposal. It never happened, and they had to compromise with whatever came along. And we as a civilizations we are not that unusual, probably. We're not that interesting. Why would we assume that we are so sophisticated they will have a party in our backyard? I would think of us as one ant out of many in the sidewalk of the Milky Way galaxy. And you realize that by now, from the Kepler satellite data, we know that about half of the sun-like stars that look like the sun, have a planet the size of the Earth, roughly at the same separation. And that means that the circumstances that we find on Earth are not unusual. And most of the stars formed billions of years before the sun. And therefore, things like us probably existed in the past. And the technological civilizations may have come and gone. By now, many of them may have perished. That doesn't mean that we cannot really find evidence that they existed. We can look for relics that they left behind, just like we do archaeology on Earth. But the point is that we should be modest and assume that we are not that special for them to pay special attention to us and show themselves. Now, it's quite possible that we will find the evidence that there is equipment floating in space or visiting close to Earth that came from other civilizations, like mail that was posted in our direction, even if the sender is not around anymore. And I have some friends in the venture capital world that would like to know, if we find such mail ever, what is the cost of the price tag on the label of that mail? That would be very interesting to find out. But I recently defined a new project that will search for such mail, for equipment that came from other civilizations. Now, in answer to Fermi's paradox, we will search, and if we find something, it would mean, that it was not easy to detect before, but now we have the instrument maybe that will allow us to detect it. Just to give you a sense, we could see objects in the vicinity of the Earth, let's say within the Earth's orbit around the sun, only if they are bigger than the size of a football field, because we're using the sun as a lamppost that illuminates the darkness around us. And an object as big as a football field reflects enough sunlight for our existing telescopes to find it. But something much smaller than the size of a football field will not be recognized. So there could be a lot of small equipment flying by that we haven't seen. Another point to keep in mind is anything that collided with the moon, for example, over the past few billion years, could be on the surface of the moon. The moon has no geological activity. It has no atmosphere that will burn up anything that comes in its direction. So in principle, we can use the moon as a museum in the future or an archaeological site, and look for equipment that we did not send that is on the surface of the moon. So you are suggesting it is in theory possible that we may find some archaeological relics, if you will, on moon or perhaps in our solar system. Yeah, I mean, space is vast. You have to recognize that in order to appreciate that the chance of something being close to you that came from another civilization is small, unless there are lots of these, and unless you look deep enough and cover a big enough volume and with enough sensitivity, you will not see something. Just to give you an example, gravitational waves were not detected
until we invested $1.1 billion in the LIGO experiment, and only then we reached the sensitivity. And now it's a common occurrence. There are tens of events that were detected once we reached that sensitivity. And the same might hold for the search for extraterrestrial technologies. We might reach a certain threshold where once we search, we will start finding a lot of things. And I think that the answer to Fermi's paradox would basically be to find those things. And I should also say that Richard Branson and Jeff Bezos were very proud of themselves after they used their wealth to lift their body by 1% of the Earth radius over the past month. And that's nothing to be proud of. The size of the observable volume of the universe is 10 to the power 19 bigger than the radius of the Earth. So space is really huge. And, in the past, we looked for radio signals from other civilizations. That's not necessarily the best approach, because it's just like trying to have a phone conversation. You need the counterpart to be alive at the time of the conversation. You need the other civilization to be roughly at the same evolutionary phase of its technologies as we are. Now we are not using radio as much as we used to, because there is cable TV or internet, and in the future we might not use radio at all. So what you are looking for is a civilization that is exactly at the same phase of our development. And since that phase lasted only 1 century out of 4.5 billion years that the Earth existed, it may be a very narrow window of opportunity. A much better approach is to look for relics. If they sent out equipment, for example, artificial intelligence systems, into space, those systems can behave autonomously, just like kids. You educate them at a young age. So you, through machine learning, such systems learn from experience, and eventually they outsmart us. Artificial intelligence is already driving cars. And in the future, within a decade, it will make life-death decisions on medical procedures. And there is no reason not to send it to space. If we are thinking about that, a civilization that existed 1 billion years ago may have done that already. Yeah. Two just comments about the Jeff Bezos. These guys have so much money, but I mean, if they could spend maybe 10 million to your projects, I think it will be better served. But anyway, if you guys are listening, I should say, even if they don't believe that we will find anything in the Galileo Project, we're searching for equipment sent by other civilizations. But even if a wealthy individual does not believe we will find something, in order to justify their belief, they could easily spend this pocket money, $10 million, on the Galileo Project, because that's roughly what we need in order to accomplish a comprehensive study of the sky, both for objects that enter the solar system into the orbit of the Earth around the sun, or objects that hover just around Earth. These are called unidentified aerial phenomena. So my point is, we have a scientific project with serious people, exceptional scientists, mostly astronomers, 20 of them in the research team that I assembled over the past month. We need funding at the level of $10, $20 million. And if there is a wealthy individual, even if that person thinks that there is nothing out there, in order to justify the view, scientifically speaking, that person should fund us. And we will provide the open data and report whatever we find, whatever we see through our telescope. So there is no agenda, no bias, no prejudice. And the other thing I should say is, this is a scientific project on a subject that existed for 70 years. And there was some data collected, of course, by the US government, mostly classified. And that's the problem. We don't have the high quality data. Yeah. But there was a report by the intelligence agencies delivered to Congress in the US on the 25th of June this year. And that's what triggered the Galileo Project. That's what allowed me to gave me the push to establish this project, to try and understand the nature of these 143 objects that were found
and not understood by the US government. And you have to understand the US government is a very conservative organization. And if they say that they are not doing their job, the intelligence agencies are supposed to figure out what objects are in the sky of the US. And if they don't figure it out, I think it's time for scientists to look into that, because that's the job of astronomers. Astronomers look at the sky and try and understand what we see. And it shouldn't be the talking points of politicians or national security advisors or military personnel. It should go into the realm of science, because you would never ask a plumber to bake you a cake. They are not trained as scientists. And so I assembled a team of scientists that we look into objects like that through telescopes. We will have systems of telescopes that I can get into the technical details if you want later, but basically try to collect, assemble scientific data that will be open. And the other, of course, frontier is trying to look for objects that enter the orbit of the Earth around the sun and look weird. Yes, that was, sorry, my next question when you said relics. One thing you are quite famous for, actually, also, is the object called Oumuamua. And now, before I have a question for you, I want to show you something. I don't know if you can see that. Yes. Can you see that? Okay. Now, every time I go on internet and search on internet or see newspapers or whatever, I see Oumuamua depicted as a rocky, solid, asteroid-type object. Now, I'm not a scientist, unsuspected listener. I will go on internet and see NASA and European space agencies depicting this particular thing, unknown thing. We don't know what it was, technically speaking, always as a rocky object. So I will automatically assume, oh, it must be heavy. Now here comes the nice Professor Avi Loeb. He said, no, hold on a second. It could be less than a millimeter thick, thin, like a solar sail object. Now I was like, okay, that's a problem. Now I should listen to NASA or should I listen to Professor Avi Loeb? So please clear our confusion for that. First of all, why they're depicting it when they know that they're not 100% sure as a rocky object? Yeah, so this object was discovered in October 2017 by a telescope in Hawaii that was monitoring the sky in a survey trying to find near-Earth objects because they pose a risk for us, and we want to map all the objects that might collide with the Earth in the future. But then this telescope, Pan-STARRS, discovered the first object from outside the solar system that came close to Earth, and it was given the name Oumuamua, which means a messenger from far away, a scout in the Hawaiian language. The telescope was in Hawaii. And of course, at first, the astronomers assumed that it's a rock of the type that we found in the solar system before, either a comet or an asteroid. A comet is basically a rock that is covered with ice. And when it gets close to the sun, the ice warms up and you get a trail of gas and dust around the object. Now, there was nothing like that around this Oumuamua interstellar object, and that meant that it's definitely not a comet of the type that we have seen. The Spitzer Space Telescope looked for carbon-based molecules, couldn't find any around it, and no dust whatsoever. And so it was clear that it's not a comet. The object was interstellar, came from outside the solar system. The reason we knew that is because it was moving too fast to be bound to the sun. And as it was tumbling every 8 hours, the amount of sunlight reflected from it changed by a factor of 10. And that meant that it has a very extreme shape. And when the variation in light was analyzed, it was concluded at the 90% confidence that it's most likely flat, a flat object, not cigar-shaped like you see in this artist illustration. So this was just an artist's illustration. Given the fact that the amount of light that we see varies by a factor of 10 as the object tumbling, people imagined a cigar that is 10 times longer than it is wide. But if you imagine a piece of paper tumbling in the wind,
when you look at it sideways, it does look like a cigar. So most likely it was a flat object, and that's unusual. It was not a comet; it was flat, and then it was pushed away from the sun. In addition to the force of gravity, there was another force acting on it that declined inversely with distance squared. And the only explanation that I could give to that force, because since there was no rocket effect, no evaporation from the object, was that the sunlight reflecting off its surface gives it the push. It's just like playing tennis. You feel when a ball the tennis ball hits the racket, you feel a push. And in much the same way, the particles of light, which are called photons, when they bounce off a surface, they give it a push. And in order for this push to be effective, given the amount of sunlight that was reflected from this object, it had to be very thin. So I suggested in a scientific paper that maybe indeed it's a millimeter thin, and it's just reflected by reflecting sunlight and pushed by that. And indeed, the light sails are a concept where you have a very thin film of material that is being pushed by sunlight or any other light. And just like the sail on a boat is being pushed by reflecting molecules of air, the wind. And so more recently, I came to think that maybe it was not a light sail, but rather an object that was thin for a different purpose. For example, a receiver of signals that was tumbling and trying to collect information. And the reason I say that is because in September 2020, there was another object discovered. It also exhibited an excess push by reflecting sunlight, and it had no cometary tail. And it was given the name 2020 SO by the astronomers that discovered it with the Pan-STARRS telescope, the same telescope. And then they realized a few weeks later, by tracking the trajectory back in time, they figured that it came from Earth. It was actually a rocket booster that we launched in 1966 to the moon. And obviously it had the thin walls. We know that because we produced it. And that's why it had a large area for its mass. So it could be, just like I say, be pushed by reflecting sunlight. But it was not designed to be a light sail. It was just thin. And so for the same reason, it may well be that Oumuamua was thin for a different purpose. But one thing is clear, 2020 SO was artificial. We made it. The question is, who made Oumuamua? Yeah, that was my next question. But we are 100% sure that it's not made by us. It came from a different solar system or whatever. That's an excellent question. The reason we know that is because it passed near the Earth only for a few months. And during those months, we know exactly what the humans were doing. I mean, there was no launch. And besides, it moved faster than any chemical rocket that we can launch from Earth by a factor of a few. So when it passed near the Earth, it was much faster than our technologies. So nature does not produce that kind of speed on a normal tumbling comet or asteroids, or you think it was abnormal because of its shape? Or now, I'm not a scientist. I'm just trying to gauge what is a normal tumbling speed, let's say, for an object like this. Okay, so the thing that was unusual, there were several anomalies about Oumuamua. One was the flat shape that I mentioned. That's not very common. The fact that it reflected the light, the amount of light that it reflected changed by a factor of 10 as it was tumbling. So that meant a very extreme shape. Usually we see in asteroids a factor of 3 at most, variation in the amount of light as they tumble. So here it was more than a factor of 10. So it meant a very extreme shape. And then moreover, it was pushed most likely by reflecting sunlight. And in addition, the speed of this object was not its own speed entering the solar system. It was more to do with the fact that it came from a very special frame of reference, which is called the local standard of rest. This is the frame that you get to when you average the motions of all the stars in the vicinity of the sun.
It's sort of like the galactic parking lot. And Oumuamua was at rest in that parking lot. So in the local frame of the Milky Way galaxy, it was at rest. And the motion of the sun relative to the local standard of rest was the motion of the sun relative to this object. So the way to think of it is that it's just like a buoy sitting on the surface of the ocean at rest. And then the solar system was like a giant ship that bumped into it and gave it a kick. And that was unusual because only 1 in 500 stars is so much at rest in that frame. And therefore, it couldn't have come from any of the nearby stars. We don't know where it came from. And there were several other unusual properties of this object that I describe in my book. But I should say that there were several scientists that tried to explain those anomalies, assuming that Oumuamua has a natural origin. And all of them suggested something that we've never seen before. There was a suggestion that maybe it's a chunk of frozen hydrogen the size of a football field. We've never seen anything like it before. The advantage of using hydrogen is it's transparent. So even if it evaporates, we would not see the vapor. That was the suggestion. The problem with hydrogen, a hydrogen iceberg, is that it can evaporate very quickly, and therefore it would not survive a long journey through interstellar space. We showed that in a scientific paper. Then there was a suggestion maybe it's a nitrogen iceberg, a chip of frozen nitrogen that was chipped off a planet like Pluto that has nitrogen, solid nitrogen on the surface. The problem there is the budget, the mass budget. There is just not enough solid nitrogen to produce enough chips such that we will see one of them over a period of a few years when the Pan-STARRS telescope was looking at the sky. And then there was a suggestion maybe it's a dust bunny, a cloud of dust particles that is 100 times less dense than air. The problem with that is, even though it's very fluffy and lightweight, so that it can be pushed by reflecting sunlight, it will not maintain its integrity as it gets close to the sun because it will get heated by hundreds of degrees. So all of these suggestions involved something we've never seen before. And to me, that illustrates the fact that we should collect more data on objects like it in the future. In particular, if we detect it ahead of time with a future telescope like the Vera Rubin Observatory that will come online in 2 years. If we find an object like Oumuamua on its approach to us a year in advance, we can send a spacecraft equipped with a camera that will take a close-up photograph. And they say a picture is worth 1,000 words. In my case, a picture is worth 66,000 words, the number of words in my book. I wouldn't need to write the book if we had a high-resolution image of Oumuamua. Yeah. I was also reading, you actually got a lot of criticism also just for, it is, for me, you are collecting simply the data, and we should also collect the data and then formulate our opinions about it. But I read in a New Yorker magazine, I think it was a New Yorker, there was Paul M. Sutter, he's an astrophysicist from Ohio State University, and he was saying, no, Oumuamua is not an alien spaceship. And the authors of the paper, he was referring to your paper, insult honest scientific inquiry to even suggest it. And then there was Benjamin Wiener or Weiner. He's an astronomer at the University of Arizona. He tweeted, can we talk about how annoying it is that Avi Loeb promotes speculative theories about alien origin of Oumuamua, forcing the rest of us to do the scientific grunt work of walking back these rumors? How you respond to these kind of criticisms, sir? Well, science is guided by evidence. I didn't have an agenda. It's just that this object looked weird. And, I just follow, as I said before, my childhood curiosity. So I don't pretend to know more than I actually know. When I was a child, the most memorable encounter for me was at dinners, meeting with the adults in the room, because when I would ask a question, the adults very often would pretend that they know much more than they actually do.
And it was sort of like an intellectual makeup that they put on their face so that they would appear more respectable. But in addition, if I were to ask a question that they had no answer to, they would dismiss the question. And I remember that very painfully as a kid. I was annoyed by that, frustrated. And I must say that the same experience repeats for me as a scientist, a senior scientist, because people dismiss the question. They argue that they know the answer in advance, and they don't pay attention to anomalies. When nature gives you something that is unusual, that deviates from what you expected, you should pay more attention and be excited by it because it's an opportunity to learn something new. I remember there was a talk at Harvard about Oumuamua, and when I left the room with a colleague of mine that worked on rocks in the solar system for decades, that colleague said, Oumuamua is so strange, I wish it never existed. And to me, that illustrates the problem. And, there was a paper in Nature Astronomy magazine by a large number of authors saying Oumuamua must be natural. And then they didn't explain what its nature is and how can they explain all the anomalies. And then after that paper was written and out of authority stated it must be natural, there was a group of people that wrote a paper on Oumuamua being a hydrogen iceberg. And then those people that wrote the Nature paper cheered and said, yeah, it should be a hydrogen iceberg. And then 6 months later, another group claimed, oh, it should be a nitrogen iceberg. And then the same people cheered, yeah, it should be. And I look at it and I say, if it was obvious to start with that it's natural, why would other groups need to write scientific papers about it being a hydrogen iceberg, then a nitrogen iceberg, then a dust bunny? If it was obvious from the beginning, these papers would not be written. So it clearly illustrates that there are anomalies that are not trivial to explain. And my point is we should put all possibilities on the table and let's get more data. Let's get evidence. It would be clear if we have a flyby and take a close-up photograph. It would be clear if it's a nitrogen iceberg, hydrogen iceberg, or an artificial object. And in all cases, we should be thrilled because we will learn something new, because we will see that the objects we've seen in the past in the solar system are not representative. In fact, the first object we find from interstellar space must be made in nurseries that we have never imagined before. Science is a learning experience. We should be happy when something new shows up. But instead, the kind of responses I hear is, oh no, it's natural, business as usual, it's a rock, it insults, we shouldn't even consider that possibility that it's artificial. And I find that unfortunate because it's a self-fulfilling prophecy. You see, that the problem is it has two issues. One, if you declare out of prejudice what an object is without collecting more evidence, it's a self-fulfilling prophecy because you will never search for evidence. You will never try to find out what objects of this type are, and you would not fund the search. So the Galileo Project is funded by private donations because I don't have any expectations that these same people will fund such a search. So it's a self-fulfilling prophecy to say we need extraordinary evidence and at the same time not fund any search and ridicule it. Because then you will never, if you're not looking for wonderful things, you will never find them. And the second thing I wanted to emphasize is that it gives the wrong message to young people because young people are curious and they think outside the box. And when they hear such responses, they realize, well, there is a risk to my career if I speak out on an idea that does not conform with what everyone else thinks. And I think this is very bad for science because science is about innovation. Science is about risk-taking. You see that a lot in the public sector. You see that in the business world. And it's remarkable to me that the business world is more daring. Even religious people. I had an Orthodox Jewish magazine called Ami in Brooklyn, New York City, that wrote a cover story about my work. And I got an email from a colleague at Harvard saying, Stephen Greenblatt, a very distinguished scholar, he said, it looks like the Orthodox are more open-minded than your colleagues.
That's wonderfully put it. You mentioned the Galileo project a couple of times. So, can can you tell us the objectives of Galileo projects and what are you trying to achieve? And also, is it technically possible now to get the results you are looking for? Right. So the Galileo project aims to collect scientific data and figure out the nature of unusual objects that are observed near Earth. And that includes two classes, as I mentioned before. One are the unidentified aerial phenomena that appeared in the uh, intelligence agency's report to the US Congress in June this year. And they argued in that report that there are objects whose nature is not clear, and it's not at all clear that they might be human-made. If there was a suspicion that these objects are from foreign nations, I don't think this report would have been written the way it did. It was. So I think it's very intriguing, actually, and there could be various possible explanations other than human-made objects. And for example, it could be some atmospheric phenomena, something in the atmosphere of Earth, and or it could be some technologies that we have not produced that came from another civilization, and we should look into that. And the best way to make progress on this is to collect high quality data, and that's what we are capable of doing because technologies now are much better than they used to be 20 years ago when some of the reports came. And you should understand also that the data, some of the data, most of which is classified, was obtained by instruments that were not optimized for the purpose of learning about the nature of such objects. So, for example, a camera in a jittery cockpit of a fighter jet is not under full control, and it cannot stand up to the scrutiny of science. In science, we want to have full control over our instruments. And so what we plan to do in the context of UAP is build telescope systems. So each system will have a few telescopes so that we see the same object from different directions and we can figure out the 3D motion of the object. We will try to get a high resolution image of the object. So an object the size of a person at a distance of a kilometer can be resolved by 1,000,000 pixels if you have a 1 meter size telescope. And I checked online a few weeks ago, and you can add it to the bag, such a telescope. It costs $500,000. So there must be people willing to pay for it. But my point is, with a big enough telescope, you can resolve the head of a pin on the surface of such an object at a distance of a kilometer. And that would allow us to read off the label, made in China, made in Russia, or made in exoplanet X. So that would be very interesting to check. And if it's made by humans, it would not be of interest to us. For me, it's as boring as finding a bird. If we see a bird, we will follow it just to make sure that it's a bird, but we don't care much about it. We are not zoologists. And I'm happy to transfer the data on birds and on human-made objects directly to those interested. But what we would look for are things that look unusual. And then we will also have infrared detectors because at night we can see warm objects that heat up, warm up as a result of friction with the air, for example. If they move faster than sound, they will surely get heated by hundreds of degrees. We could see them in infrared. And then there will be also radar systems. And the data will be going through cameras, state-of-the-art cameras, to computer systems that will analyze the data and look for objects of interest, and then guide the telescopes in tracking them. So that's, that kind of equipment was never used by astronomers. If a bird flies above a telescope of an astronomer, he or she ignores it. They just ignore it, and we will track those birds and anything else like drones or something unusual. And then the second part of the Galileo project is to develop software that will identify objects like Oumuamua, then design a space mission that will be equipped with a camera that will
intercept its trajectory and take a close-up photograph, and perhaps even land on the surface. You know, there was a mission called OSIRIS-REx that landed on the asteroid Bennu and took a sample from it that it will bring back to Earth in 2023. So just imagine landing on a technological piece of equipment and seeing all the buttons there. You know, the reaction of many astronomers to Oumuamua was similar to the reaction of a caveman, you know, to a cell phone. If you present a caveman with a cell phone, the caveman would say, "Oh, it's just a shiny rock." But this is just the beginning of a learning experience. If the caveman is curious, the caveman will notice that by pressing a button, he or she can record their voice, or by pressing another button, they can record their image. And the same for us. You know, if we get more data on an artificial piece of, if we land on a technological equipment, we can press buttons and see what they do. And that would be a remarkable experience because we can import that technology to Earth. In principle, it could be worth a lot of money. Yeah, two questions. First, where you will going to use these telescopes or equipment? Do you have any particular place in USA or maybe somewhere near the restricted aerospace? We heard so many stories that these things tend to go near the particular areas of nuclear sites and. This is an excellent question, and we discussed it within the research team of the Galileo Project. And of course, the main limitation is the number of telescope systems that we will be able to develop. We will make one system, test it, and once we are sure that it performs to the specifications that we need, we will make copies of it. So right now, I received about $2 million in donations over the past month. And we actually have a crowdfunding link that people are welcome to find on our website at Harvard University, the Galileo Project. They can just find it through Google with my name, Avi Loeb, or the Galileo Project, Harvard University. And there is a funding opportunity, and we have $2 million that allows us to perhaps build 10 copies of telescope systems of the type that we are thinking about. But that's not enough. In order to have good chance of detecting a UAP, we probably need 100 or several hundreds of telescope systems to cover enough of the sky. And for that, we need funding at the level of 10 to 20 million dollars. Yes, this is the the website of the project. And so if we have 100 or hundreds of telescope systems, obviously we will place them in many different locations. And it's not clear whether the clustering of UAP reports was just the result of the fact that we monitor the sky around sensitive facilities, military facilities or nuclear facilities. Perhaps we just, patrol these areas more often and find those UAP there. So to find out, we will need to scatter those telescope systems, and that may include places outside the US. And of course, it will be challenging to maintain telescopes in very remote locations, but we will do our best. And with a budget of $10-20 million, I think we can do a very good job. Okay, so I also read recently, I think you know this gentleman very well, Mr. Shostak from SETI. Yes. And he said, I think it was in Scientific America, I think he wrote an article about the Galileo Project, and he was an article almost, friendly, I would say, but in the end, he also mentioned that, let me go there and say, well, that we already have like a satellite system watching the Earth and atmosphere for a very long time, and we haven't found any evidence of the items what Professor Loeb is looking for. So, but I am all for it. At least he has guts and talent for it. So, yeah. So with respect to those satellites, I should explain that a satellite that orbits the Earth actually does not is very often moving very fast across any given point on Earth, and it goes around the Earth every hour and a half. Typically, those communication satellites, for example,
And as a result, when we have images, those satellites that take images, they spend very little time above any point on the globe, and they will not fulfill our need. The best way, we looked into that, and we realized that the best way to monitor objects of interest that are within a few kilometers from the surface of Earth is to have telescopes on the ground. So the data that one can get from satellites is not really useful. We looked into that. Then people made also the suggestion that astronomers are looking at the sky all the time, and how come they don't see anything? Well, they don't track objects that are moving fast across the sky. Astronomers focus on very distant objects. Yeah. And then some people were saying, well, a lot of people in the public have cell phone cameras. There are millions of them, and how come they don't record the UAP? And the answer is, a cell phone camera has an aperture of a few millimeters at best, and with that aperture you will always get a very fuzzy image of an object the size of a person at roughly a distance of a kilometer or so. So you cannot really, a million cell phone cameras are not equivalent to one big telescope. And moreover, most people do not look up. It takes time for them to take their phone out if they see something unusual. And, it's not at all clear that they can identify things that are small and moving fast. And so I would say there was never a scientific study of the type that we're planning, and it's about time to get it going. Yes. Hyperactive, you have a question? Yes, of course, of course. Professor Loeb, now my question, I would start from asking, like, how common do you think life is in the universe? So my premise is that we should be modest. Whenever we try to assume that we are special and unique, we were proven wrong. And I can understand why we did that, because my daughters, when they were young and they stayed at home, they thought that they are the smartest in the world, and because they only met their family members. But once we took them to the kindergarten, they met other kids and realized that other kids may have better skills than they do. And of course, for them, the first day in the kindergarten was quite traumatic. They had a psychological shock to realize that. And if I were to ask them, they would prefer to stay at home. But that's the reality. And, we can decide not to look through our windows. That would not get rid of our neighbors. The reason we chose to call the Galileo Project after Galileo is because Galileo Galilei realized by looking through his telescope that probably the Earth moves around the sun, that we are not at the center of the universe, as people thought for thousands of years before that. It's natural to think that we are at the center. Then the philosophers at the time refused to look through his telescope. They said, we know that the sun moves around the Earth, and they put him in house arrest. So we don't want to make that mistake now and again. And so we decided to call this the Galileo Project and look through our telescope to figure out the truth. It's a natural tendency to think that we are special and unique. We are born into the world like actors put on a stage, and we tend to think that the play is about us. But the point is, the stage is huge. It's 10 to the power 26 times bigger than the size of our body. We are certainly not at the center of the stage. And moreover, the play has been going on for 13.8 billion years. It's not about us. And so out of modesty, we should look for other actors. And that's my point, that I think that we are common, that things like us, out of modesty, existed many times over. There are tens of billions of other stars, like the sun, just in the Milky Way galaxy. And then there is a billion galaxies like the Milky Way in the observable volume of the universe. So altogether, there are more planets like our planet than the number of grains of sand in all beaches on Earth. And so why would we think that we are special and unique and alone? That makes little sense. It's much more natural to assume that
that there were many things like us before us that predated us and still around, perhaps. But Professor Loeb, like people, when we talk to scientific community, they give us this picture like a star. Will have a zone called as like habitable zone or Goldilocks zone. Okay, so and the life, most probably would be any planets who reside inside this Goldilocks zone. Will have a better chance of having life. Now in solar system we have three planets which are near to this Goldilocks zone. One is Venus, which kisses the Goldilocks zone inside, and we have Mars, which is at the exterior of this Goldilocks zone. But only it is on Earth we see life. But if we talk in that sense, for us, the possibility of life existing in the satellite of Jupiter or Saturn is more compared to over these planets who are near to this Goldilocks zone. So do you think this Goldilocks zone or habitable zone does really make any sense? Yeah, I do think it makes sense for life as we know it. There is, of course, the possibility of life as we don't know it. For example, under the ice of moons, the moons like Enceladus or Europa have very thick icy surface. But under the ice, we believe there is liquid water, and there may be life there that is not the way we know it, so to speak. And the question is how to search for life as we do not know it. And that was the subject of my latest essay, actually, that I wrote yesterday. And one way to improve our imagination is to follow the path of physics. In physics, for example, the neutron was discovered in a laboratory in 1932 by Chadwick. And then around the same time, Landau, a theoretical physicist, suggested that there might be stars made of neutrons. And astronomers later found that the Milky Way galaxy has 100 million neutron stars. And there are a billion times more in the observable volume of the universe because there are a billion Milky Way-like galaxies. And in fact, we discovered collisions of two neutron stars because they produce gravitational waves that were detected by the LIGO experiment over the past few years. There were at least two events related to two neutron stars smashing. Yes, that's and true. we believe that the gold that we weld into wedding bands, that we put in wedding bands, that gold is produced in neutron star mergers. It's not produced in other environments. It's produced mainly in that neutron star merger. So the moral of this story about neutron stars is that a concept that we uncovered in the laboratory, something that we learned from laboratory experiments, ended up allowing us to imagine something else in the universe, a neutron star, that we later found exists. And in the same way, when we search for life, we might experiment in the laboratory, create synthetic life, and that would allow us to imagine environments where life as we don't know it exists. So that's just a footnote to what you said. Now, with respect to Mars, Venus, and the Earth, the reason that Mars was not successful until recent, it was perhaps successful in having life early on because it was similar to Earth, but it's 10 times less massive. So it could not hold on to its atmosphere. And you cannot have liquid water if you don't have background pressure of an atmosphere. And therefore, only planets that are big enough could have liquid water on their surface. And Mars is 10 times less massive than Earth. It lost its atmosphere. And therefore, all the liquid water that used to be on the surface, we believe there was liquid water, all of that evaporated. So the Perseverance rover, now that NASA sent to Mars, is looking for relics of life that may have existed early on when there were oceans or maybe ponds of liquid water on the surface of Mars. So Mars lost life on the surface because it lost its atmosphere. If it could have kept its atmosphere, it would have perhaps have
life today. And Venus, unfortunately, went through a greenhouse effect. So the surface of Venus became extremely hot. You cannot have liquid water on the surface, sort of like a major global warming that Venus went through. And the outcome is that there is no possibility for liquid water on the surface. It's too hot and no chemistry of life. But you could have life in the clouds of Venus at an elevation of about 50 kilometers from the surface. The conditions are similar to the lower atmosphere on Earth. So you could have life in droplets in the clouds of Venus. An interesting question to think about is, why don't we have green clouds on Earth? Why don't we have microbes populating clouds? Why do we see all the clouds as white? They could have been green if there was life in them. Some people suggest that maybe on Venus, the clouds at 50 kilometers height have life, because we've seen tentative evidence for a molecule produced by life, phosphine. We don't know if there is. And actually, NASA announced plans for sending 2 missions to Venus to find out whether there is life in the clouds, perhaps by scooping them. Yeah, I think that's an interesting question. I think why we see there's a background noise somewhere. Why we see our atmosphere or sky as blue and not green? I think it should be green because of the chlorophyll. But I think you suggested earlier, if I remember correctly, I think you were right, because of the radiation because we face. Yeah, the ultraviolet radiation at high elevations kills microbes. But I also heard recently that they have conducted a test, a sort of test, that they test some microbes. I think it was on a space station somewhere, and they tried on to the export space them. station, they found microbes that came with missions that visited the space station. Yeah, you're right. There are also some microbes, tens of kilometers above the ground that the wind carries. And in principle, if there is an asteroid that is grazing the Earth, that does not hit the Earth, but just scooping the clouds, it could potentially lift some microbes and take them for the ride, just like tiny astronauts. Okay, so yeah, I have less time because I know you have to go. Let's skip maybe 1 or 2. Okay, so you recently spoke about this DoD report released by the US government. Now, when I read this report, I was like, okay, yeah, actually people were expecting much more than that. But I heard you saying that, well, it is because these guys use some classified sensors. They cannot tell us how they got this data, because then they will reveal the method, and they don't want to reveal, and that's makes sense. So do you think that okay, there's no other nice way to ask, do you think that US government does have some evidence of life in the universe generally, and they are not letting us know for some reason? I don't know what reasons. You can speculate. I don't believe in any conspiracies by the government, because I don't think the government is competent to maintain such secrets for a very long time. And I think what may be true is that there are some unusual phenomena, these unidentified aerial phenomena in particular, where the government does not know how to interpret those objects or incidents. And that's because the data is not good enough. But at the same time, there is probably a big iceberg of data that we have no access to, that is classified, because, as you said, it was collected by classified instruments. Not so much the data being classified because of its content, but because of the way it was collected. So, because the US government, you have to understand, is monitoring the sky for national security reasons. And if the data were to be released, it would reveal the sensors that are being used. And that's why the Galileo Project, would use its own instruments off the shelf. You can purchase them off the shelf.
and the data will be open. So we will not have that restriction. And frankly, I don't want to look at classified data because it would limit my ability to speak as a free scientist. And I think that if we follow the scientific method of collecting data with instruments we have full control over, we know exactly what they're doing, and we optimize those instruments for the purpose of collecting that data, that it will become clear what these objects or reports are all about. And the fog will clear up, and we are doing an important service to society, because I think it's unhealthy for people to speculate about low quality data. And if the scientific community ridicules the subject, it keeps it in the same stage where we don't have high quality data. It will never be possible to say what's going on. And it reminds me of what the situation with medical profession about 1,000 years ago, when people were saying that the human body has a soul and therefore anatomy should be forbidden. So imagine if scientists were saying, oh no, we don't want to deal with the human body because there is a lot of nonsense being said about it. Some people say that it has a soul and therefore you shouldn't have an operation because it would affect the soul in some way. If scientists were following the same rule with respect to the human body, where would modern medicine be? If we didn't have operations, we would be very much backward. So my point is that science, has a duty to use the scientific method and clear up the fog on subjects where we don't have good enough data. And it's actually the duty to engage in such subjects where nonsense is being said, because then you want to bring the scientific version of the evidence-based knowledge that we can assemble in that context. Okay, Hyper, do you have any last question? Yeah, so my last question would be quite interesting. Okay, so Professor Loeb throws some light on interstellar travel. Now, we all beings of Earth, we have infinite amount of time, maybe a couple of billion years. Now we have to achieve a lot of things in terms of science and technology to enable ourselves to travel outside solar system. And by looking at our current state of technology, we are waiting for a lot of breakthroughs. So please throw some light on it. Right. So by the way, finding technological equipment from other civilizations will give us a glimpse at our future, because if they predated us by 1 billion years, we might be able to have a quantum leap into our future, because once we see that equipment, we will realize something that would have taken us very long time to develop ourselves. It would feel like cheating in an exam, but if it saves us 1 million years of technological development, who cares? There is no teacher looking over our shoulders and grading us. So we better learn of their advances. We are obviously now at the infancy of space exploration. And the reason I say that is because a lot of people still have the ambition of sending astronauts to space. And I think this is the wrong approach, because the human body was not selected by Darwinian evolution to survive in space. If you stay for more than a year in space, far from the protective womb of the Earth's magnetic field and the Earth's atmosphere, you would be bombarded with cosmic rays, and a significant fraction of the cells in your brain will be damaged. And that's not something that anyone wants to go through. And I think until we find a solution for how to protect humans over long periods of time outside, very far away from Earth, we should not send them. It makes much more sense to send artificial intelligence systems, because they outsmart us already on some tasks. And within a decade, they would outsmart us on many other tasks and almost everything, because they would learn from experience and they would develop the skills necessary to behave properly. And so I think the future lies with sending AI systems instead of astronauts, because they can survive over long periods of time. That are made of electronics, and we can make them survive in space for millions or billions of years. And
that was not done yet. We haven't sent AI systems. So that would be something to wait for. And the other aspect is that they can be connected to 3D printers so that they would replicate themselves if they land on another planet out of the raw materials that they find there. So that would be quite similar to biological creatures. If we are able to have systems that have intelligence, AI systems, that can replicate themselves, they are better than humans. They can survive long journeys and they can produce copies that will make more copies and more copies and so forth. And we for need, men, sorry? for probes like von Neumann probes. Yes, like, exactly. That's right. Von Neumann suggested that perhaps self-replicating probes dominate the galaxy, and I do think that now we can understand how to make them, because in his days it was not clear how you make a 3D printer or an AI system, but now we are there, and so we can potentially build such systems that would fulfill von Neumann's dream. And actually, it may not be a dream. Maybe we live in such a reality. If there was even one technological civilization that predated us 1 billion years ago that already did that, there may be a lot of probes everywhere in the Milky Way galaxy, and we just need to look for them in our vicinity. Now, the other aspect of space that I should mention is propulsion. Because the chemical rockets that we developed so far, since the days of Sputnik, the first one that went to space, they're all moving at a percent of the speed of light, 10 to the power minus 4 of the speed of light. That's a very slow speed because it takes about 50,000 years to reach the nearest star to us. And it's roughly the amount of time that elapsed since the first humans left Africa. And so, if we sent a spacecraft back then, it would reach the nearest star to us only now. That's a very long time, and we want to save time. So if we developed propulsion that allows us to transfer material objects at a fraction of the speed of light, we could get to the nearest star, Proxima Centauri, within our lifetime. And this is the rationale behind the project Starshot, whose advisory board I'm chairing. The idea there is to use the light sail technology that we were talking about before, where we shine a very powerful laser on a 1 gram light sail in space and push it to 1/5 of the speed of light over a few minutes. If the laser is 100 gigawatt, that can happen, and the sail can be pushed in the direction of the destination. And then if that destination is Proxima Centauri, within 20 years, at 1/5 of the speed of light, we would reach it. So that kind of a propulsion is, of course, advantageous in bridging across large distances. And we don't have that technology yet, but maybe others developed it. And I should say that astronomers would not notice something flying at a fraction of the speed of light, near Earth. They would assume that it's just a cosmic ray or some malfunction of the instruments they're using. But we should keep an eye on the sky and make sure that there aren't any probes moving that fast near us. Yeah. Well, unfortunately, I mean, I have so many questions, but the professor has to go. So, but my last question, you also mentioned this Starshot. Okay, we don't have time, but you also wrote a paper with some that there is some dangers of cosmic dust, interstellar dust, the interaction of relativistic spacecrafts with the interstellar medium. I think you and a couple of other guys. And you also said, well, there is a risk between the stars traveling. Even this is small size spacecrafts, if you will. I don't know if they can survive. So I was wondering earlier, I didn't have a chance to ask you that the Oumuamua was traveling for billions of years, perhaps. It didn't get any, you think, any dust or damage
it survived, even if a really bit thin was. So yeah, that's an excellent question that you're asking. First, with respect to a light sail moving at a fifth of the speed of light to the nearest star, Proxima Centauri, we showed that a millimeter thick coating could protect it, basically, from dust. You have to understand that when a dust particle collides with such a spacecraft, because the spacecraft moves at a fifth of the speed of light, in the frame of the spacecraft, the dust is moving at a fifth of the speed of light, and when it impacts the surface, it's just like a tiny nuclear explosion on the surface. It releases as much energy or more energy than a nuclear explosion per proton colliding, and so it will create a cavity. And we calculated that you can mitigate that risk because dust is has a very low density in space, and it shouldn't be too much of a concern. Now, with respect to Oumuamua, that didn't travel from the nearest star, but it actually could have traveled from much farther away. The speed was just a percent of the speed of light, so it's 10 to the minus 4. So it was moving at roughly the speed of a chemical rocket, but a little more, a factor of 2 or 3 more, but not enough to cause it much damage. So that was part actually of the original paper that I wrote with my postdoc Shmuel Bialy on this object, Oumuamua. We calculated whether dust would slow it down or cause damage, and we found that it's not an issue. It's not a problem because it moved. It's not moving very fast relative to the surrounding medium. Okay, so before I let you go, I know that you're also a member of the President's Council of Advisors on Science and Technology at the White House. Did any president in the past or present ever speak with you on the subject of UAP, or you advise them on the subject of UAP? Just a fun question. No, no president talked with me. And as I said before, I prefer not to know about classified data on this issue because it would limit my freedom as a scientist. So I behaved much like a kid. That's the way we started this conversation. Yeah. A kid, when you tell a kid what the truth is, the kid ignores you. The kid wants to find the truth for himself or herself by experiencing it. And that's what we are trying to do with the Galileo Project. We're trying to, science is about reproducibility of results. So we will collect our own data. We don't believe anyone else. We don't want to dig into data taken by others because we don't know the quality of the instruments and how much control they had and so forth. We want to have our own instruments, record the data, and then analyze it. And if these phenomena, occur in the sky all the time, we should be able to find them and analyze them in the scientific way and then reach scientific conclusions. And even if the explanations are mundane, it's good to know them. So we will be looking for something unusual, but if we don't find it, we will report back that we don't find it. Well, Professor Avi Loeb, that was really wonderful and honor for us that you came today on our show. So thank you very much for your time. I hope once you get the results from the Galileo Project, if you have time, come here again and let us know what your findings were. So I will be delighted. And if we don't find anything unusual, I hope that one of the viewers of this show in India or Pakistan will be the one to unravel some exciting news, because I think it's important for the future of humanity. And it's not about my research, me as a person, it's more about our collective future to figure out whether we are the smartest kid on the block or maybe there is someone smarter than us out there. Once again, thank you very much. It was an honor, sir. Thank you. Good day. Bye-bye. Thank you, Professor Loeb. Bye. My pleasure. All right, folks, there you have it. It was Professor Avi Loeb from Harvard University, gracious enough to give us his time. I know he was very busy, but he said he will come, and we are extremely thankful to him. जी दोस्तों, और आयो जी वेलकम। अनफॉर्चुनेटली जब आप आए थे तो उस वक्त वो उससे पहले वो कह चुके थे हमें कि मैं
मेरे पास कुछ जाना है तो मैंने फिर भी थोड़ा सा 10-15 मिनट ज़्यादा ही खींच लिए हैं। आई होप ही हैज़ टू रन नाउ बिकॉज ही वाज टेलिंग अस बिफोर वी स्टार्ट कि यार मुझे जाना तो 1 घंटे में ख़त्म करो इसको। बट वेलकम। थैंक यू शाह जी, कोई नहीं, चलता रहता है। मेरे पास असल में इससे बहुत ज़्यादा सवाल थे। मैंने तो ये 4-5 पेपर प्रिंट करके भी रखे हुए थे, लेकिन वही बात हमने होती है कुछ कि पूछा ही नहीं है उनसे एक्चुअली। अभी द प्रोफेसर इज लाइक अ प्रोफेसर, यू नो, व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग वो फिर बड़े डिटेल में उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो मेरे ख्याल में मैंने जो सवाल किए थे उसमें से हमने सिर्फ 8 या 9 ही उसको कर सके। लेकिन एनीवे, कैसे आप? ठीक है? बढ़िया बढ़िया। तबीयत ठीक है आपकी? नहीं नहीं, तबीयत तो ठीक है, मजदूरी काफी चल रही है आजकल, तो अच्छा, लगे पड़े हैं। रोकड़ा कमाया जा रहा है। जी जी जी। अच्छा, तो धनवर्ष में। वो भी जरूरी है, वो भी जरूरी है। अच्छा, तो जनरली स्पीकिंग, आई डोंट नो इफ मैंने आपको पहले शेयर किया था कि आप इनके वर्क को जानते हैं। जब हमने शुरू किया था तो मेरे, अब चूंकि ये इंग्लिश में था तो मैं थोड़ा सा इसको रिकैप कर देता हूँ। हमने इनसे पूछना ये था कि ये एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बहुत फेमस प्रोफेसर है, और इन्होंने ये जो ऑब्जेक्ट है अमुआ का, आई थिंक आपने इसको सुना होगा, इसके बारे में देखा होगा कि ये एक आउटर स्पेस से इस तरह की शेप को एज्यूम किया जाता है कि जैसे सिगार शेप के ऑब्जेक्ट है, वो हमारे सोलर सिस्टम में आया और फिर वो उसी तेजी से चला गया। तो इस पे बहुत सारी थ्योरीज थी क्योंकि लोगों को पता नहीं था कि ये क्या चीज़ है। ज़्यादातर लोगों ने कहा, मैंने ये सवाल आज उनसे किया भी था कि जी आप हमें ये कह रहे हैं कि जी ये एक सोलर सेल टाइप का ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब भी हम डिपिक्शंस देखते हैं इसकी अखबारों में, न्यूज़ में, तो हमेशा ऐसे जैसे रॉकी प्लैनेट दिखाया जाता है, सॉरी रॉकी एस्ट्रॉइड की तरह दिखाया जाता है। तो आपका क्या ख्याल है? तो हिज एक्सप्लेनेशन वाज कि भाई बात यह है कि जो डेटा हमारे पास मौजूद है, अब ये उसका डेटा वो कह रहा है, ये नहीं कि मैं उसकी अपनी वो है, उसकी ऑफ कोर्स एक यूनिक पर्सपेक्टिव है इस चीज़ के ऊपर, जो कि दीगर साइंटिस्ट जो है वो उससे एग्री नहीं करते, और मैंने उसको वो बताया भी था। मुझे लगा थोड़ा सा उसको गुस्सा आ गया था उस टाइम पे शायद, बट अगर वो सुन रहे तो देयर इज नो डिसरिस्पेक्ट इंटेंडेड, कि जी वो ये कहते हैं कि जी ये तो एस्ट्रॉयड है। तो ये कहना चाह रहे थे कि भाई एस्ट्रॉयड अगर है भी तो वो एस्ट्रॉयड फिर उस तरह बिहेव नहीं कर रहा। मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जब वो एग्जिट कर रहा था सोलर सिस्टम से तो उसकी स्पीड बढ़ गई थी, विच इज़ वेरी अनयूजुअल, क्योंकि अगर आप एक स्पेस में फ्री ग्रेविटी के अंडर हैं तो योर स्पीड शुड रिमेन ऑलमोस्ट द सेम। यहाँ पर ओमुआमुआ के बारे में कहा जाता है कि जब ये एग्जिट कर रहा था सोलर सिस्टम तो उसकी बढ़ गई थी। तो उसके ऊपर उन्होंने ये बेस किया कि जी ये काइंड ऑफ ए सोलर सेल, बहुत थिन किस्म की सोलर सेल है, जो कि maybe that is one of his explanation, artificially made. तो हाइपरएक्टिव जी, आप कोई कमेंट करना चाहें? सॉरी यार, मैंने आपको ज्यादा बोलने नहीं दिया, मैं तो सोचा था। अरे चलता है शाह जी, हम आपस में बोलने के लिए थोड़े बैठे हैं इधर, हम उनका सुनना चाहते थे। एंड 1 आवर में हमने जितना क्वेश्चन पूछना है उसने पूछ लिए। एंड मुझे ये भी लगा था कि डॉक्टर लोब ने भी थोड़ा कंसाइज रखने की कोशिश की है, वो बहुत डीपली नहीं जा रहे थे बात को लेके, ठीक है। तो जल्दी खत्म करके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस लेने की भी वो भी कोशिश कर रहे थे। तो जितना भी हमने क्वेश्चन पूछा 8-9 क्वेश्चंस जो भी हो, तो बहुत ही वैलिड क्वेश्चंस थे। बट ये एक सिंबल होता है। देखो अब हम लोग क्या है, हु आर वी, अब वी आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। अब उनके स्ट्रेचर के सामने है तो हम कुछ भी नहीं है। अब वो उतने बड़े यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो गए, ही हैज वर्कड विद स्टीफन हॉकिंग, ही हैज वर्कड विद ऑल द पीपल हु हैव बीन एसोसिएटेड विद दिस ब्लैक होल इनिशिएटिव। तो वो फाउंडिंग डायरेक्टर रहे हैं ब्लैक होल इनिशिएटिव के। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के वर्किंग्स में उनका हाथ है, ठीक है। एंड उतना बड़ा प्रोफाइल होके भी एक हमारे जैसे मामूली लोगों से भी बात करने। Yeah, he's very humble. Yeah, that's I wanted to say. So what he stands for is for, you know, he says people need to listen and understand about these things. So उनके सामने हम कुछ भी नहीं है। अब 5 मिनट भी हम उनसे बात कर ले तो ये
वी कैन से इट इज़ आवर गुड फॉर्च्यून। तो आज तो 1 घंटा बात किया उन्होंने, तो बहुत ही कमाल का बात किया, नो रिग्रेट्स व्हाट्सोएवर। बट अब नेक्स्ट टाइम जब हम ट्राई करेंगे तो शायद हम 1-2 घंटे की स्ट्रीम लगाने की कोशिश करेंगे। वी हैव लॉट मेनी थिंग्स टू डिस्कस एंड थैंक यू रुस्तम शाह जी, बिकॉज ऑफ योर एफर्ट। आपने एक महान व्यक्ति को लाके हम सबको दर्शन करवाया उनका। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। नो, मैं उससे ज़्यादा तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि ये वो बात हमेशा कहते हैं कि इंसान को हम्बल होना चाहिए, मतलब एरोगेंट नहीं होना चाहिए। एंड दिस इज ऑल हिज स्पीचेस। इफ यू गो ऑनलाइन एंड सर्च हिम, यू विल हियर दिस फ्रॉम हिम मैनी टाइम्स। वो ये कहता है, यार हम इंसान जो है ना, अपने आप को बहुत बड़ी फिल्म समझते हैं, बहुत बड़ी चीज़ समझते हैं। मतलब अगर मैं उसको हिंदी उर्दू में, हम लोगों को हम्बल होना चाहिए, हम लोगों को एक जैसे बच्चे की तरह क्यूरियस होना चाहिए, कि जो चाहे और देखे भाई इस दुनिया में या इस यूनिवर्स में क्या चीज़ हमारे लिए सीखने को मौजूद है। और आप जो लोग जो भी देख रहे हैं, मुझे पता है ये एक छोटा सा घंटे का इंटरव्यू था, तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ों का आपको ना पता हो, लेकिन अगर आप प्रोफेसर आवी लोब को इंटरनेट पर सर्च करेंगे, यूट्यूब पर सर्च करेंगे, तो आपको इनकी बहुत सारी टेक टॉक्स मिल जाएंगी, आपको इनकी इंटरव्यूज़ मिल जाएंगे। बल्कि अभी वो शुरू में कह भी रहे थे कि हाँ, वो कुछ कोविड की वजह से भी है कि मैंने लास्ट टाइम तकरीबन कोई लास्ट 1 साल में 1.5 साल में मैंने कोई 1000 के करीब इंटरव्यू दिया। तो ही इज ऑलमोस्ट लाइक अ रॉक स्टार नाउ डेज। तो ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें हैं जिससे मैं ऑफ कोर्स इनसे सारी बातों से एग्री नहीं करता। खास तौर पे मेरे पास चूँकि ज़्यादा वक्त नहीं था, मैंने इनसे ये पूछना था, ये जैसे खास तौर पे जो सोलर सेल वाला आइडिया है, मुझे पता है इनके पास इससे ज़्यादा डेटा मौजूद है, लेकिन चूंकि वो टाइम का मसला था तो शायद इस वजह से हम नहीं कर सके। लेकिन होपफुली अगर कभी नेक्स्ट टाइम ये हफ्ते चढ़े तो हम इस पे दोबारा पूछेंगे। तो आपने आयोजी एक पेपर्स वो दिया है सच सेलेक्ट उसकी तरफ से, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की तरफ से। मैंने ये पूछा था उससे, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट में बार बार आया कि हमने उनसे पूछा भाई ये इज इट एनीथिंग अदर देन दैट। तो उन्होंने उसकी कुछ एग्जांपल देने की कोशिश की, जैसे उन्होंने कहा कि ये नाइट्रोजन आइस का बना हुआ वो था। लेकिन उनकी अगर आप पीछे जाके सुनेंगे ना, तो उसकी उन्होंने बड़ी अच्छी वो दी है कि मसला ये है कि ये ऐसा नहीं है कि ये ट्रैवल कर रहा था ज़मीन के सूरज की तरफ। ये एक्चुअली एक जगह पे रुका हुआ है, क्योंकि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो भी इस मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर की तरफ रोटेट कर रहा है। तो वी एक्चुअली बम्प इनटू दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो उसे it was- बोलते हैं हाँ, रिलेटिविस्टिक अप्रोच। तो दो भी हो सकता है, वो स्टैग्नेंट है एंड हम मूव कर रहे हैं, हाँ, और हम स्टैग्नेंट है एंड वो मूव कर रहा है। दोनों का मैथमेटिकल रिजल्ट एक ही आएगा आपको, आएगा। बट एक और दूसरे का इनवर्स होगा बस। हाँ, लेकिन जो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात उन्होंने बताई वो ये थी कि ये जो पोजीशन है, जिस पोजीशन पे ये मौजूद है, इस तरह की हमारी गैलेक्सी में से कोई 5000 की मेरे ख्याल में उसने कही थी, या 500 थी, जो सितारे जो स्टार्स है, ये उन्हीं के साथ पॉसिबल है। तो इट्स हाईली अनयूजुअल द अमाउंट ऑफ स्टार्स इन आवर गैलेक्सी। आई थिंक इट्स लाइक, कहते हैं कोई बिलियंस है, 100 बिलियन स्टार्स हैं, उसमें से वेरी लिमिटेड नंबर स्टार्स के साथ ये इस तरह फिट होता है। तो he was suggesting that it was placed perhaps, if you accept that hypothesis, it was placed like a beacon, कि वो उसका एक वक्त आना था जब वो इस सोलर सिस्टम से टकराएगा। तो वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आप सिर्फ अपनी लिमिटेशंस को, अंडरस्टैंडिंग को सिर्फ इंसानों तक महदूद ना रखें, कि भाई इस इंसान है बस, सारी जो यूनिवर्स है वो हमारे गिर्द घूरती है, हम पता नहीं क्या खास चीज़ है। वो ये कह रहे हैं कि अगर आप कॉस्मिक लेवल पे देखेंगे तो हमारी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब हम बहुत छोटी सी चीज़ है, और ये पॉसिबल है कि लाइफ इन दिस यूनिवर्स कुड एग्जिस्ट आउटसाइड। तो आपका अगर कोई, आप आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड हिम बिफोर और इफ यू हैव एनी कमेंट आयोजीज, आपने कभी इनको पहले सुना है? जी, थोड़ा बहुत जब आपने सजेस्ट किया था तो मैंने थोड़ा सा इनकी टॉक्स वगैरह सुनी थी। 2017-18 के बीच में इन्होंने काफ़ी टॉक्स वगैरह की थी, तब मैंने रिसर्च करा था, तब इनके वो सुने थे मैंने टॉक्स वगैरह। या तो इंटरेस्टिंग तो है फाइंडिंग्स, लेकिन ये है कि मैं उनसे वो क्वेश्चन भी वही पूछना चाह रहा था कि साइंटिफिक कम्युनिकेशन में पर्टिकुलरली व्हेन यू आर एट द फ्रंटियर, तब आप कितने जल्दी कम्युनिकेट करें। क्योंकि होता है जल्दी जल्दी में, हड़बड़ी में गड़बड़ी वाला आ जाता है काम,
और एक दो ओपिनियन है साइंटिफिक कम्युनिटी में भी, एक है ऑर्थोडॉक्सी वाला है और एक है हेटेरोडॉक्सी वाला है। ऑर्थोडॉक्सी वाले कहते हैं भाई रुको रुको रुको, थोड़ा आराम से देखो चीज़ों को और उसका इम्पैक्ट समझने की कोशिश करो, उसके बाद अपन कम्युनिकेट करेंगे। और हेटेरोडॉक्सी वाले हैं क्योंकि वो चैलेंज कर रहे हैं ऑर्थोडॉक्सी को, उनके पास फंडिंग रिसोर्सेज वगैरह नहीं है, तो वो जल्दी से जल्दी पब्लिक डोमेन में लाना चाहते हैं चीज़ों को, क्योंकि उससे उनको सपोर्ट मिलेगा, लोग मोटिवेट होंगे। तो ये दोनों की फाइट चलती है। तो पर्टिकुलरली ओमुआमुआ टाइप की डिस्कवरीज के बारे में और ऑर्थोडॉक्स लोगों का कहना क्या है कि अगर आप क्विकली जनता के बीच में ला दोगे तो क्या होता है कि कई सारे अनसाइंटिफिक थ्योरीज वगैरह भी फैल जाती है जनता के बीच में, और उससे लॉन्ग टर्म में साइंटिफिक कम्युनिटी को नुकसान होता है, क्योंकि जब वो थ्योरीज फैल होती है तो लोगों का साइंस के ऊपर से भरोसा उठता है। और हेटेरोडॉक्सी वाले लोगों का कहना ये होता है कि भाई पब्लिक इंटरेस्ट बनाए रखना पड़ता है साइंटिफिक एंडेवर से, पर्टिकुलरली स्पेस रिसर्च जैसे डोमेन में। तो वहाँ पे वो दोनों के व्यूज हैं। अब जे जो थे डॉक्टर लोएब, वो उस टाइम पे वो हेटेरोडॉक्सिक वाले उसमें व्यू में आ गए थे और इन्होंने जल्दी कमिट कर दिया। बाद में जब ये पेपर आया तो जो इनका था, दो साइंटिस्ट लोग हैं एलन जैक्सन और स्टीवन डैश का, मार्च में, तो इन्होंने वही फिनोमिना जो ये कह रहे थे ओमुआमुआ वाला, उसको नाइट्रोजन से एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो इंफ्रारेड टेलीस्कोप्स में दिखाई नहीं देती है आसानी से, बट क्योंकि जब उसका मैं वो रिसर्च पढ़ा हूँ, वो नाइट्रोजन आइस वाला रिसर्च, बट वो भी करेक्ट इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये केमिकल कॉम्बिनेशंस के हिसाब से उन्होंने थ्योरी नहीं पब्लिश की, वो तो सिर्फ एक स्पेकुलेशन ही है। ठीक है, अब इन दोनों लोगों के पास डेटा जो मौजूद है ना, ये दो भी आर्गुमेंट जो भी दे रहे हैं, इनके पास डेटा सिर्फ एंड सिर्फ दो चीज़ों पे टिकती है। एक, वो लाइट की जो ब्लिंकिंग हो रही थी, जो कम और ज़्यादा हो रहा था, जिससे हमको पता लग रहा था कि ये ऑब्जेक्ट रोटेट कर रही है। ठीक है, ये एक है। दूसरा डेटा है इसका ट्रेजेक्टरी, ये किस डायरेक्शन से अंदर आया एंड कैसा वो मोड़ लिया। ये दोनों के अलावा एंड उसका स्पीड के अलावा बाकी का सब कुछ ये जो है ना, वो स्पेकुलेशन से है। ठीक है, ये ऐसी बात हो गई कि जब आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रपोज की थी, तो उसको भी इसी तरह के कमेंट से गुजरना पड़ा। लोग बिलीव भी नहीं कर पाए कि वो क्या बोलना चाहते हैं, वो यकीन भी नहीं करना चाहते थे कि एक स्पेस टाइम होता है, वो बेंड होता है। उनको बहुत स्क्रूटिनी से गुजरना पड़ा। इनफैक्ट वो फर्स्ट टाइम जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो नेगेटिव में रिजल्ट आया, तो वट एवर ही वॉज प्रिडिक्टिंग दैट वाज नॉट शोन इन द रिजल्ट्स। बट फिर भी वो रिसर्च जारी रहा। ओके, द थर्ड टाइम वट एवर हिज प्रिडिक्शंस विद वो डेटा से मैच हो गया। तो मुझे ये लगता है कि इतनी कम डेटा होने से ईदर ऑफ द साइड्स को कोई ब्लेम देना या उनको क्रिटिसाइज करना इज नॉट फेयर। अब सब लोग ये मानते हैं कि ओमुआमुआ इज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। ये अपॉर्चुनिटी थी, हमने इसको ट्रेजेक्टरी बदलने के टाइम इसको रिकॉग्नाइज किया। वो टाइम पर तो हम डिटेक्ट भी नहीं कर पाए इसको। ठीक है, तो अर्थ अच्छा, मैं की अपने पॉइंट पे वापस आता हूँ, वो यहाँ भटक गए थे हाइपर एक्टिव जी। तो मैं जिस बारे में बात करना चाहता हूँ वो हेटेरोडॉक्सी वर्सेस ऑर्थोडॉक्सी या कंसेंसस के मैं बारे में वही पॉइंट पे साइंटिफिक बात कर रहा हूँ, मैं वही पॉइंट पे बात कर रहा मेरा हूँ। पॉइंट एक्सप्लेन कर लेने दो, उसके बाद में बोलना। ठीक है, तो ये पॉइंट, आप हेटेरोडॉक्सी वाले हमेशा चाहेंगे कि चीज़ें जल्दी से जल्दी पब्लिक व्यू में आए, लेकिन उसका रिस्क है उस चीज़ का, क्योंकि अगर वो अंडरस्टैंडिंग लॉन्ग टर्म में सही नहीं होती है तो लोगों का भरोसा उड़ जाता है। तो ये एक है। दूसरी तरफ जो कंजर्वेटिव है वो लोग क्या करते हैं, कई बार सेंसर कर देते हैं चीज़ों को, जैसे लैबलिक वाले केस में हम लोगों ने देखा है, हाइपोथेसिस वाले केस में सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज की वजह से एक वैलिड लाइन ऑफ इंक्वायरी को सेंसर कर दिया गया। और भी बहुत सारी फील्ड है साइंटिफिक फील्ड में जिसमें होता है कि जो हेटेरोडॉक्सिक ओपिनियन होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है, उसको ऊपर आने नहीं दिया जाता है। लेकिन एक तरफ, दूसरी तरफ जब मैं देखता हूँ तो कंजर्वेटिव या जो कंसेंसस ऑर्थोडॉक्सी वाला व्यू है, उनका ये पॉइंट भी मुझे ठीक लगता है कि भाई अगर ऐसी चीज़ें बहुत जल्दी पब्लिक के सामने आ गई तो होता ये यही है कि एक तो ये है कि बहुत सारे नॉन साइंटिफिक ओपिनियन उसमें मिक्स हो जाते हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनना शुरू हो जाती हैं। और कॉन्टैक्ट नाम की फिल्म में हमने ये चीज़ देखी है अच्छे से, कि जब इस तरह की फ्रंटियर डिस्कवरी आती है लोगों के सामने तो किस किस तरह की चीज़ें होती हैं, और उससे ओवरऑल साइंस एज एन इंस्टीट्यूशन उसको नुकसान हो जाता है। अब ये जो फाइट है उसमें मैं टॉर्न हूँ दोनों की तरफ से, और ये ओमुआमुआ एक अच्छा
ये है हमारे पास केस स्टडी है, क्योंकि शुरू में लोगों ने कहा था कि वो सिगार शिफ्ट है, लेकिन मॉडर्न जो फाइंडिंग्स आ रही हैं, जब अच्छे से एनालाइज करके देख रहे हैं डेटा को, तो उसमें शेप जो आ रहा है वो एक डिस्क टाइप का, डिस्क तो नहीं, मैं मिलेनियम फाल्कन टाइप का पैनकेक शेप्ड आ रहा है वो हाँ मॉडल से। तो वो आ रहा है, और ये जो नाइट्रोजन वाला है, नाइट्रोजन इजेक्शन वाला है, वो आ रहा है दूसरा। और कहते हैं कि वो पहले मोटा था ऑब्जेक्ट, और धीरे धीरे कॉस्मिक रेस की बॉम्बार्डमेंट की वजह से वो पतला होता गया और इधर आया है। और जब ये इधर से पास हो रहा था, तो वह नाइट्रोजन इजेक्शन की वजह से उसकी स्पीड बढ़ गई। और ये सारी चीजें जो है, जितनी भी फाइंडिंग्स है उससे अलाइंड है, परफेक्टली अलाइंड है, जितनी भी तो हम वो लोगों के पास डेटा है उससे। तो तो आपने वही उस कह रहा जगह, हूँ। हाँ तो आपने उस जगह कहीं ये पढ़ा है, जो भी आप लेटेस्ट बता रहे हैं जी कि वो जो टम्बलिंग इफेक्ट है, वो जो फैक्टर ऑफ 10 का जो वो था, वो जी, फिर वो कैसे हो रहा था? हाँ, वो वही चीज़ है। तो टम्बलिंग है, और उसका जो लाइट का बढ़ना कम होना है, वो उसी से नाइट्रोजन से उन्होंने एक्सप्लेन किया। उसका मेटालिक टाइप का जो व्यू इन्होंने बताया, पहले बताया था, उसको भी उन्होंने नाइट्रोजन की वजह से ही, जो शाइनिंग है इफेक्ट, उसको भी नाइट्रोजन की वजह से ही, इजेक्शन की वजह से एक्सप्लेन किया। नॉर्मली जो कॉमेट्स होते हैं, वो जो होते हैं, वो उसमें नाइट्रोजन कम रहता है और कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ज़्यादा होती है, तो वो उस पे दिख भी जाता है। हाँ इंफ्रारेड टेलीस्कोप्स वगैरह पे उसकी टेल भी दिखती है, डस्ट भी होती है। इस वाले में एस्ट्रॉइड था, इसलिए उस पे था नहीं वो। लेकिन नाइट्रोजन जैसा, अगर नाइट्रोजन फील्ड ऑब्जेक्ट होगा, तो उससे वो दिख जाता है। अब लेकिन इस चीज से एक चीज हमारे पास क्लियर हुई कि इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो बहुत सारे आते हैं इस सारे एपिसोड से। जो पॉजिटिव चीज मैं बता रहा हूँ वो ये है कि पूरी की पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी का जो ध्यान है वो इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स की तरफ चला गया है। हम्म, और एक बोरिसॉव नाम का कॉमेट आया था 2019 में, तो उसके ऊपर अच्छे से ध्यान दिया गया था, और उसको प्रॉपरली इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट की तरह से उसकी डेफिनेशन दी गई थी। तो ये जो है, इस सारे के सारे एपिसोड से ये पॉजिटिव हम लोग ले सकते हैं। वैसे मैं, मेरा ख्याल है उन्होंने इस चीज का कहीं जिक्र बट किया है। शाहजी, मैं इससे अग्री नहीं करता, क्योंकि दो एक आदमी अगर वो अपनी रिसर्च से एक हाइपोथेसिस दे रहा है, तो उसको ब्रैकेट में डाल देना कि ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है या अनऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है, ठीक है, दैट दैट इज एज यू नो गुड एज बीइंग इग्नोरेंट। नहीं, वो मेरा अगर ख्याल, वो जो अभी हाँ जो तो आयोजित जिस स्टडी का बता रहे हैं, वो भी साइंटिस्ट ने ही की है, तो ये नहीं, एक वो भी साइंटिस्ट ने किया है, बट फिर भी उस पे वही ना, मैं वही बोल रहा हूँ अभी। इससे पहले ये डेटा को प्रेजेंट किया गया था कि ये ऑब्जेक्ट शायद शायद हाइड्रोजन आइस से बना होगा, क्या ठीक है। तो उससे उससे पहले ये बोल रहे थे कि ये कोई मेटल ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट होगा जिसका इतना शाइनिंग है, क्योंकि बिना मेटल के इतना शाइनिंग लाना इम्पॉसिबल है। एंड उसके बाद ये भी बोला गया है, क्योंकि इतना मास वो लूज किया है, इसलिए वो इतना शॉर्ट टर्म लेने के लिए वो प्रोत्साहित हुआ। अब ये अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि एज गुड एज, अब दोनों पार्टीज के पास वही सेम एविडेंस है। आप दोनों कैसा इंटरप्रेट करेंगे वो अपने ऊपर। बट साइंटिफिक कम्युनिटी में वो होता है कि अपोजिशंस होते हैं, उसमें डिस्कशन होता है। बट आपका अपोजिशन ही नहीं हो, आप अगर अपोजिशन नहीं है, तो वो आपका डिस्कशन कैसे बढ़ेगा, उसका ऊपर थॉट कैसे बढ़ेगा? हाँ नहीं, तो वैसे मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। आयुष जी ने अभी जो बात की ना, मैं अभी पीछे जाके दोबारा देखूंगा, क्योंकि मुझे याद पड़ रहा है कि उन्होंने इस बारे में कहा था, ये नाइट्रोजन वाली जो है ना, इसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि व्हाई ही थिंक that particular जी, hypothesis is not correct. I don't know, आप उस वक्त थे या नहीं थे, लेकिन it will be nice to hear now after आई थिंक मैंने उनका I, आर्टिकल पढ़ा है। हाँ, दोनों ने इनकॉर्पोरेट कर लिया था उसकी चीज़ों को। उन्होंने बस काउंटर ये किया है इस चीज़ पे कि वो रिलेटिव स्पीड वाला जो है, वो कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये एक तरह से अजम्पशन ले लिया डॉक्टर लोब ने कि ये लोग जो कह रहे हैं कि वो इस ओर्ट क्लाउड का हिस्सा है, जबकि वो ऐसा कह नहीं रहे हैं वो लोग। अच्छा जो जो लोगों ने नाइट्रोजन वाला था हाइपोथेसिस, वो लोग ये नहीं कह रहे हैं। उन्होंने ये समझ लिया कि ये लोग ये कह रहे हैं कि ओर्ट क्लाउड से आया, यानी हमारी सिस्टम का से आया है, जबकि वो लोग ऐसा कह नहीं रहे थे। और उन्होंने इसके ऊपर फिर वो जो रिलेटिव मोशन ऑफ स्टार्स वाला वो वाला आर्गुमेंट दिया। वो आर्टिकल भी मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, लोग अगर रीड करना चाहें तो उनसे शेयर हाँ, किया जा सकता है। अच्छा मेरे साथ हाँ तो ये ये दिखा है, है, मैं मेरा उसको भी पॉइंट सिर्फ इतना देख। है कि फ्रंटियर डिस्कवरीज के ऊपर कम्युनिकेशन कितना फास्ट होना चाहिए, यस, ये एक बहुत बड़ा सवाल है।
लेकिन मैं एक चीज़ के बारे में मैं एटलीस्ट उनके हक में यूँ कि इस पोजीशन पे रह के इस तरह की आइडियाज़ को प्रमोट करना भी आई थिंक एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि आप साइंस को प्रमोट ही कर रहे हैं, क्योंकि इट जनरेट ठीक है। अभी आपका व्यूज़ भी हो सकता है कि आपने जैसे भी ये अच्छा सवाल पूछा है कि भाई जल्दी कर दें या थोड़ा वेट कर लें, तो आई थिंक हो सकता है वो थोड़ा सा जल्दी कर देते हैं। लेकिन अब हमने एक बात देखी है, जैसे मैंने बिल्कुल शुरू में इनसे कहा था कि आपका स्टेटस ऑलमोस्ट लाइक अ रॉक स्टार हो गया है, क्योंकि इट एक्चुअली जनरेट अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन द साइंस एंड स्पेस। अगर आप इनको जाके देखें, जैसे हमने शुरू में भी कहा, इनके 1000 से ज़्यादा सिर्फ एक साल के अंदर इंटरव्यू हो गए। मतलब इतना मुश्किल है इनसे टाइम लेना, क्योंकि वो उस दिन मुझे चैट उस पे ईमेल पे कह रहे थे, यार मैं ये नहीं कर सकता, मैं बुक हूँ, आई एम ऑलरेडी बुक्ड इन वेस्ट अमेरिका। ओके, आप तो ऑलमोस्ट लाइक अ स्टार। तो अब जैसे मुझे इस चीज़ का नहीं पता था, अब मैंने जब इनसे बात की या मैंने इनसे रिसर्च करना शुरू किया, तो मैं गया इंटरनेट पे, मैंने जाके देखना शुरू किया कि भाई ऐसा ये क्या बातें करते, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली जो कि मुझे पहले नहीं पता थी। तो आई थिंक इन दिस सेंस ही इज ऑलरेडी सक्सेसफुल। आप इसकी बात कर रहे हैं साइंटिफिक अमेरिका वाले की, जो आपने भी शेयर किया आयो जी, नाइट्रोजन आइसबर्ग। जी, उन्होंने इसी पेपर के काउंटर में वो लिखा था, हाँ, ओके, ये मैं जो इसको सेव कर पेपर लेता आया हूँ था कि नाइट्रोजन वाला, उसके काउंटर में ये लिखा था। तो ये कब का उन्होंने पब्लिश किया है? ये भी मार्च 19 2021 का ही। अच्छा, तो ये लेटेस्ट मेरे ख्याल में आप कह सकते हैं। ये मार्च तो का ही बट होगा, मार्च अप्रैल का। हाँ, मार्च में ही है। हाँ, तो लेकिन ये लेटेस्ट आज है, की वो पेपर के आने के हाँ, बाद। पेपर मार्च में आया था। हाँ, यस यस, दैट्स लेटेस्ट वन। हाँ, वो कब आया था पेपर? मार्च में? आई थिंक इट इज 16th of March, राइट? किसका? वो जो हाँ, नाइट्रोजन वाला? वो नाइट्रोजन है इसका, ठीक है। हाँ, अब मैं 18th of March का दूसरा पेपर आपको दिखा सकता हूँ, जिसमें ये कहा जा रहा है कि दिस कुड बी प्लूटो लाइक प्लैनेट, ठीक है। ये चीजें तो होती रही। हाँ, हाँ, नहीं, तो well, 18th एटलीस्ट of हाँ, लेकिन 18th एक of चीज जो है March, ना, 2 days आफ्टर द सेम नाइट्रोजन आइस का जो भी पेपर पब्लिश हुआ, हाँ, उसके बाद ये पेपर पब्लिश हुआ जो मैं अभी आपके पास डाल रहा हूँ। तो ये चीजें ना होती रहती है, ये सभी हाइपोथेसिस है। मैं वही बोल रहा हूँ, किसी के पास भी प्रॉपर डेटा नहीं है, बट एक आदमी को ये कह देना कि तुम्हारी आइडियाज बहुत रेडिकल है ओनली बिकॉज इट इज नॉट इन द कॉन्टेम्पररी वे ऑफ थिंकिंग इज क्वाइट रॉन्ग। हाँ, उनका भी आइडिया आना चाहिए, उसको बैठ कर डिबेट कीजिए आप डेटा लेकर आके, ठीक है। हाँ, तो ये देखिए, दिस इज पब्लिश्ड ऑन 19th हाँ, लेकिन ये 19th। आईओजी भी अभी जैसे बात कर रहे थे ना कि ऑलमोस्ट लाइक अ पैनकेक शेप, फ्लैट पैनकेक शेप, तो इससे थोड़ा सा मिलता जुलता ही है ऑफ कोर्स, कि वो इस चीज़ पे तो खैर एग्री करते। जो मैं वही बात कर रहा हूँ कि एटलीस्ट जो है ना, लोगों ने इसको सीरियस लेना शुरू किया। और अभी ये जैसे भी बात कर रहे थे, इनका जो गैलीलियो प्रोजेक्ट है, इसके लिए उनको ऑलरेडी रफली को कहते हैं $2 मिलियन की प्राइवेट फंडिंग हो चुकी है। तो एटलीस्ट वो इस चीज़ में कामयाब रहे कि वो जो एक क्यूरियोसिटी जनरेट करने का जो मकसद था लोगों के बीच में, तो उस पर डिबेट हो सकती है। आयोजी का क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है। मैं इनसे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि भाई आपका तरीकाकार क्या होना चाहिए। और आजकल के दौर में जहाँ कंस्पिरेसी थोड़ी वैसी बड़ी राइफ है, मैंने भी एक आखिर में छोड़ दी थी, मैंने ऐसी मजाक में उनसे कह दिया था कि आप प्रेसिडेंट साहब से के पास जाते रहते, कहीं आपने किया हो तो लेकिन इस सेंस में आई थिंक ही इज डूइंग गुड वर्क। अच्छा, मेरे साथ कुछ 2-3 लोग हैं, उनसे जल्दी कमेंट लेते हैं। तो जी, ये कौन? अच्छा यार, अजीज मोरानी जी, आप कैसे हैं आप? हाँ जी सर, मैं ठीक हूँ। थैंक्स फॉर टेकिंग मी। इट वाज अ एक्सीलेंट शो, वेरी गुड सो फार। ठीक है ना? अच्छा जी, हाइपर एक्टिव कैसे हो आप भाई? और नमस्ते सर, हेलो। ठीक है सर। रुस्तम शाह साहब, बहुत जबरदस्त शो था, मजा आ गया। लेकिन मेरे को लगता है आपको किसी मौलवी को बुलाना चाहिए था, इनके 2 मिलियन बच जाते भाई। वो तो आंखों से देख के बता देते कि चांद निकला नहीं निकला है। ये सोचने वाली बात है, पता है आपको। सर लेकिन मेरे बोलिए बोलिए। मैं कह रहा हूँ, मैं ऑलरेडी मौलवी से भी कांटेक्ट में, हो सकता है कोई एक आध मौलवी आ जाए। कसम सबका खुदा की, मौलवी। प्यार प्यार मोहब्बत से पकड़ो, सीन लगा देंगे उसकी। चलें थैंक ठीक यू है, वेरी बस मच मुझे तो आपका। ये मैं कहना था। अनफॉर्चुनेटली आपकी जो सुपर चैट थी वो मैं नहीं कर सका उस पर सामने, मैं बिजी था। बट No, थैंक यू that's वेरी okay. मच सर, आपको सुपर चैट का, और थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट सर, एज No, ऑलवेज। no, थैंक यू। no, no. I mean, I was pretty glad. I was very glad to see that you had more than 1,000 views. I mean, viewers at that moment.
But हाँ नहीं anyway, ये I have also seen some messages on a chat saying that if you have done this in an Urdu, it would have been better for your channel and you would have more views. I do not agree with that. I would tell those people do not speak English. At least try to learn English, at least enough to understand English. If do not speak English, that's fine. At least learn enough to understand it, and try to read it, learn it, speak it. But if you do not, then we don't necessarily have to do this always in Urdu or Hindi or whatever. Yeah, I think So what please, ये happened, message उनके लिए. हाँ मैं जो 1000 वाला मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने इनसे शायद कहा था तो उन्होंने कहीं इसको भी शेयर किया था खुद उन्होंने ही, बहरहाल में किसी जगह पे, आई डोंट नो. तो वो जो उनको सुनने वाले थे वो मोस्टली जो है वो बहरहाल में बाहर से थे, लेकिन एनीवे मोस्ट वेलकम, जो आना चाहते हैं Yeah, आए. of course, these people need to understand that we're liberal and we're literate, you know. तो एटलीस्ट उनको सीखनी चाहिए, ये बात समझनी चाहिए कि भाई जरूरी नहीं है हमेशा एक ही चैनल पे हो. जैसे बड़े बड़े प्रोफेसर है, वो इंग्लिश प्रोफेसर था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का था, फलान जो भी है. लेकिन कहने का ये है कि भाई आप सीखो ना. आप ये कमेंट में क्यों डाल लो कि भाई हिंदी में करो तो आपको ज्यादा व्यूज मिलेंगे, ये मिलेगा वो मिलेगा. पूरी दुनिया इंग्लिश समझती है, आप नहीं समझते हो यार. ये मेरा मसला है. तो मैंने कमेंट में भी लिखा था कि भाई आप लर्न करो ना इंग्लिश, कैसे बोलते हैं कैसे नहीं, क्या बोल रहा है बंदा. ठीक है सर. बहरहाल बहुत जबरदस्त शो था. एक्सीलेंट, गुड जॉब एंड कीप इट अप एंड आई एम विद यू ऑल द वे. ओके, थैंक यू सर. थैंक यू. ऑलराइट सर. बाय बाय. अच्छा जी, हमारे साथ है कमल. हेलो. हाँ जी सर, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है. सर मैं पूछना चाहता था, जो 3 थ्योरीज हैं यूनिवर्स के एंड के बारे में, है ना, उसमें से आपको कौन सी करेक्ट लगती है, या हाइपर एक्टिव जी को कौन सी करेक्ट लगती है? तीन आप कौन सी वाली की बात कर रहे हैं? मेरे ख्याल में से ज्यादा भी है. आप किन की बात नहीं कर रहे हैं? मतलब आपको सबसे ज्यादा करेक्ट कौन सी लगती है? मेरे ख्याल में मेरे तो हाइपोथेसिस है जो मेरे ख्याल में अभी तक सबसे ज्यादा लोग जो कहते हैं कि एक वक्त आएगा सारे स्टार्स जो है वो जल के अपना उनका वो खत्म हो जाएगा, फिर इस कायनात में शायद वो रह जाए, ब्लैक होल्स ही रह जाए. यार मुझे मेरी आवाज कहीं से रिपीट होती हुई आ रही है. इज इट मी और कहीं आपको एको कोई होता हुआ आ रहा है? ओके, तो आखिर में ये होगा कि एक कोल्ड डेथ की तरह एक ये है हो जाएगी. जी शाह जी, एको आ रहा था. ओके, अब मेरे ख्याल में खत्म हो गया. ओके, सो शायद मेरा माइक से आ रहा था वो, मैं म्यूट कर लेता हूँ. एक तो ये है कि जी दुनिया यूनिवर्स के अंदर जितने स्टार्स है वो अपना जल के खत्म हो जाएंगे एक वक्त आएगा. तो इट विल बी लाइक ए कोल्ड डेथ टू द यूनिवर्स. इसके अलावा कुछ कहते हैं कि जी जैसे अभी वो हाइपर एक्टिव भी कुछ देर पहले कह रहे थे, मैं उनसे बात कर रहा था कि मे बी हम लोग जो है वो एक उससे निकले, ब्लैक होल से शायद बाहर बरामद हुए. तो ये एक साइकिल है जो चलता रहता है. साइक्लिक यूनिवर्स की भी एक थ्योरी है कि वो शादी वो ब्लैक होल नहीं है, वो सिंगुलैरिटी. हाँ, इनिशियल सिंगुलैरिटी कहते हैं. हाँ. तो उसमें ब्लैक होल में फर्क होता है. इनिशियल सिंगुलैरिटी के टाइम पे स्पेस एग्जिस्ट नहीं करता था, बट ब्लैक होल स्पेस में एग्जिस्ट करता है. वो स्पेस को पंक्चर करके एग्जिस्ट करता है. तो अब सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट होता है, हो सकता है. तो मैं वो बात कर रहा था. हाँ, तो इस तरह की है. और तीसरा जो हमारे जो मुसलमान भाई है वो कहते हैं जी अल्लाह आएगा, वो सूर फूकेगा और सारी छुट्टी हो जाएगी, लपेट दिया जाएगा और उसके बाद काम तमाम छुट्टी. लेकिन उसके बाद फिर जो है वो आप एक एक्स्ट्रा डायमेंशनल यूनिवर्स पे चले जाएंगे जहाँ यू लिव फॉर एवर एंड एवर. ओके, दैट्स जस्ट जोकिंग. लेकिन मेरा ख्याल से मुझे जो लगता है मेरी फेवरेट, आई वुड से मुझसे पूछे तो ये सारे हाइपोथेसिस है, लेकिन मेरे ख्याल से वो जो एक कोल्ड डेथ वाली है, स्लो कोल्ड डेथ वाली, सारे स्टार्स खत्म हो जाएंगे और फिर, लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि पीछे वो ब्लैक होल्स रह जाएंगे, उनका क्या होगा? एनी आइडियाज जी, इफ वी हैव ओनली ब्लैक होल्स इन द यूनिवर्स? जी ब्लैक होल्स भी अपनी एरा जिएंगे और हॉकिंग रेडिएशन के थ्रू एक एक करके फटते जाएंगे. धीरे धीरे उसका मटेरियल निकलता जाएगा और जैसे ही इतना मटेरियल निकल जाता है कि उसकी ग्रेविटी होल्ड नहीं कर सकती उसको, तो वो फट जाएगा. तो इस तरह से ब्लैक होल फटते रहेंगे और फिर उनका जो मटेरियल निकलेगा
तो या तो वो कोएलेस करेगा, नया स्टार बना सकता है, या तो फिर वो खुद ही प्रोटॉन डीके के थ्रू एक एक करके टूटता चला जाएगा और बेसिकली सारा जो यूनिवर्स है वो कोल्ड हो जाएगी। वो तो बहुत मतलब बहुत स्लो बात कोल्ड, हाँ स्लो कोल्ड यूनिवर्स, लेकिन वो यूनिवर्स रहेगी। मतलब वो जो स्पेस, जिस जगह यूनिवर्स एग्जिस्ट करती है, हाइपर स्पेस में, जिसमें भी आप कहते हैं, बट इट विल बी स्लो कोल्ड लाइटलेस कोल्ड कोल्ड यूनिवर्स। लाइटलेस जब ब्लैक यूनिवर्स। ब्लैक हेल एरा में लाइट रहेगा ही नहीं। नहीं तो इससे नहीं आपको लगता कि जो यूनिवर्स का जो स्टार्ट बताया जाता वो भी कुछ इसी तरह की किसी टाइम से मिलता जुलता था? मतलब वहाँ कुछ भी नहीं था, मे बी इट वॉज लाइक अ ब्लैक कोल्ड हाइपर स्पेस, जहाँ कुछ हुआ और उसके बाद से एकदम वो इन्फ्लेशन हुआ और पूरी यूनिवर्स है वो बन गई। ये भी एक हाइपोथेसिस है शाह जी, जो आप कह रहे हैं ना, ये भी एक हाइपोथेसिस है। ये क्या बोलते हैं ना, यूनिवर्स अल्टरनेशन, अल्टरनेशन कुछ इसी तरह बोलते हैं उसको। अब यहाँ पे क्या होता है, जो भी ब्लैक होल्स लेफ्ट ओवर हो जाते हैं, तो ये बोला जाता है कि ये सब कुछ एक दूसरे को कंज्यूम करना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर बाद में जब ये सिमट के एक जगह पे आ जाएंगे, फिर वो फटेंगे एंड फिर वो यूनिवर्स हो सकता है उधर से। बट एज पर नाउ, स्टैंडिंग फ्रॉम हियर, हमको ये सिर्फ हाइपोथेसिस ही मिलता है, कोई एविडेंसेस नहीं मिलते हैं हाँ किसी भी तरह का। एंड मोस्ट बैक्ड थियरी ये है, उसको बोलते हैं बिग फ्रीज। ठीक है, जो आपने बोला है, सब कुछ ठंडा हो जाता है, सिर्फ ब्लैक होल्स रुक जाते हैं यूनिवर्स में, एंड एक एक करके वो पट के वो भी खत्म हो जाता है। उसके अलावा इनका क्वेश्चन में और दो है, उसको बोलते हैं बिग क्रंच। बिग क्रंच क्या होता है, जब ऐसे जिस तरह से यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम के बाद क्या होता है, यही मैटर फिर वापस से तेजी से आने लगता है वापस। ठीक है, फिर वो वही सिंगुलैरिटी पॉइंट पर पहुंचने की कोशिश करता है जिससे वो बर्स्ट हुआ था। तो एक तरह की पल्स होता है, बर्स्ट हो फिर जुड़ जाओ बीच आसपास आके, फिर बर्स्ट हो फिर आके जुड़ जाओ। तो ये एक हाइपोथेसिस है। एंड दूसरा है बिग रिप। बिग रिप में क्या होता है, यूनिवर्स इतनी एक्सपैंड हो जाती है कि एटम के बीच में जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो भी एक दूसरे के बीच में घूमना बंद कर देते हैं। तो ये भी हो सकता है, क्योंकि जिस तेजी से हमारी यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही है, अल्टीमेटली सब कुछ फैल के रिप हो जाएगा, एक दूसरे से अलग अलग होके फिर विनाश आ जाएगा। तो ये भी होता है। ये तीन हाइपोथेसिस है। बट मॉडर्न टाइम में मुझे लगता है ज्यादा लोग बिग फ्रीज को ज्यादा मार्क्स देंगे रादर देन बिग क्रंच एंड जो द अदर थिंग बिग रिप। हाँ जी कमल साहब, आपको कोई और सवाल? आपका माइक म्यूट है। आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। हेलो हेलो जी सर, मैं जी आ कहना रही है। चाहता हाँ मतलब साइंस ने जितनी भी तरक्की कर ली है, लेकिन ये यूनिवर्स के एंड की भाई आपका मैं यार आपके माइक, माइक का हाँ वो मेरे ख्याल आपको मैं ड्रॉप कर रहा हूँ दोबारा, फिर दोबारा ट्राई करें। शायद आपका माइक का मसला है। तो वो जो सवाल कर रहे थे वो ठीक है, मतलब ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हम ये कहें कि जी हमें सब कुछ पता है। हमें सब कुछ पता नहीं हो सकता, हमारी बहुत लिमिटेड नॉलेज है, और उस लिमिटेड नॉलेज के ऊपर हम सिर्फ यही कर सकते हैं जो एक छोटा सा गेस कर सकते हैं। तो वो जो यूनिवर्स का जो टाइम पीरियड है, कॉस्मिक टाइम स्केल है, वो बहुत बड़ा है, मतलब हम तो उसमें कहीं भी नहीं आते। जैसे वो भी प्रोफेसर साहब भी कह रहे थे कि हमारे जो स्टार है ये अभी इसको बनने में शायद 8-10 कितने जो सोलर सिस्टम शायद बनना शुरू हुआ था अराउंड 10 बिलियन ईयर्स। 13.7 बिलियन ईयर्स। नहीं हमारे जो ये सोलर तो सिस्टम है यूनिवर्स है, अपना सोलर तो सिस्टम 4.5 का है। 4.5, हाँ। 4.5 का, 4.5 का है वो। 4.7 बिलियन ईयर्स ओल्ड हमारा सन है, एंड उससे भी हाँ छोटा, उसके मतलब थोड़े अर्से बाद उसके 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड सारे प्लैनेट्स बनना स्टार्ट हो गए थे। हाँ यस। तो वो मतलब तो हमसे पहले भी यूनिवर्स मौजूद थी, और उसमें स्टार्स थे, और उसमें और हमारे जाने के बाद भी हम लोग तो शायद ऑन अ कॉस्मिक स्केल, मेरे ख्याल में हमारा जो सूरज है वो अगले जी। कुछ बिलियन साल में हमें इतना नज़दीक, इतना बड़ा हो जाएगा कि लाइफ ऑन द प्लैनेट अर्थ विल बी इम्पॉसिबल। चाची, अपना जो सन है वो भी सेकंड जनरेशन स्टार है, क्योंकि हाँ आयरन से हैवी मटेरियल जो है वो सुपरनोवा से ही बनता है।
तो हमारे अगर हम लोग का पहली जनरेशन वाला स्टार होता तो हमारे आसपास में ये सब आयरन से हैवी मटेरियल मिलते नहीं हमको। तो वो कहीं से सुपरनोवा से माल फटा था, उसके बाद वो गैदर हुआ नेबुला में, उससे सन बना है, तभी हमारे पास आयरन से हैवी मटेरियल्स हैं। हाँ, तो जो आप उनकी बात कर रहे हैं एम टाइप स्टार्स की, जो कि वो जो डॉफ स्टार्स है उनकी बात कर रहे हैं जो हमसे पहले बने, शायद नहीं, जो पहले जो स्टार्स बने थे वो तो बहुत बड़े और तुरंत फट गए थे, वो वाले स्टार थे। एम टाइप स्टार्स बाद में आए हैं, छोटे छोटे स्टार्स। वैसे हाँ, ये आपको इंटरेस्टिंग बात लगेगी सबको कि एम टाइप स्टार्स जो है वो उनकी हमारी गैलेक्सी में एटलीस्ट उनकी तादाद ज़्यादा है। मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल में बाकी गैलेक्सीज में शायद वही है, और वो ज़्यादातर जो स्टार्स हैं वो बाइनरी स्टार्स हैं, मतलब उनकी आपको शायद बाइनरी स्टार्स ज़्यादा नजर आएंगे। तो सन इस सिलसिले में आप कह सकते हैं कि इसे यूनिक तो नहीं कहूँगा, मतलब एक डिफरेंट क्लास ऑफ स्टार्स है जो कि कम है। एम टाइप स्टार्स ज़्यादा है शायद हमारी कायनात में, जी, यूनिवर्स में, और वो ज़्यादा लंबे अरसे मेरे ख्याल में ज़्यादा टिकते हैं। क्योंकि वो अपने एनर्जी को बहुत स्लो बर्न करते हैं। और आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि गलतफहमी ये होती है कि जितना बड़ा स्टार होगा वो इतनी ज़्यादा देर चलेगा। नहीं, इसमें उलट उलट होता है। जितना बड़ा स्टार होगा वो उतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो एनर्जी को उतनी तेज़ी से खर्च कर रहा है, जो कि ये स्लो जो है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपने ज़िंदगी ढूंढनी है कायनात में तो यू शुड ऑल्सो फोकस ऑन एम टाइप स्टार्स, बिकॉज वो बहुत लंबे अरसे तक जिंदा रहते हैं। बल्कि मैंने ये सुना है, आई डोंट नो इफ इट्स एक्यूरेट और नॉट, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि सम ऑफ दिस एम स्टार्स विल रिमेन एक्टिव फॉर मे बी 80 बिलियन ईयर्स और मोर, क्योंकि वो ये इतना लास्ट स्टार्स होंगे जो सब तारे मर जाने के बाद, अपार्ट फ्रॉम ब्लैक होल्स, ठीक है। तो ये चीज रहेंगे, क्योंकि ये बोला जाता है इनको ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स रहते हैं, या ठीक है। इवन हमारी जो नियरेस्ट स्टार है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है, वो भी उसका भी एम लाइफ, टाइप है। हाँ, वो भी एम हाँ, टाइप वो स्टार है। बहुत बड़ा लाइफ स्टाइल है। जब इस पूरी सोलर सिस्टम, जब सोलर सिस्टम बोलो, मैं पूरी गैलेक्सी खत्म हो जाएगी, फिर भी इन जैसे स्टार्स रह जाएंगे, ठीक है। एंड वो लास्ट रेमिनेंस होगी इस यूनिवर्स की, जो भी बच गए। Yeah. But it is interesting to know that our Proxima Centauri जो है वो M type star है, और हमसे सिर्फ 4.5 लाइट ईयर, सिर्फ ऑफ कोर्स के सिर्फ का मैं रिलेटिव कह रहा हूँ। आप सिर्फ चाय पीने के लिए जा इसको कह सकते सकते हो कि अगर आप यहाँ पे ना जो भी हमारी करंट टेक्नोलॉजी, जो सोलर सेल प्रोफेसर लोब कह रहे थे, अगर वो सोलर सेल पे बैठ के आप निकल गए, ठीक है, तो आपको 20 साल लगेंगे वो तारा तक पहुंचने के लिए। बट आप ट्रैवल कैसा कर रहे हो, आपको ऑलमोस्ट 20% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड से आप ट्रैवल कर रहे हो, Yeah. ठीक है। उस स्पीड से अगर आप ट्रैवल कर रहे हो ना, वो वहां तक पहुंचने के लिए आपको 20 साल लग जाएंगे। अब हमारे पास उससे भी तेजी से जाने का कोई अभी तक तो कोई कोई प्रॉपर मैथमेटिकल मॉडल अवेलेबल नहीं है। मैं वैसे भूल गया, मैंने ये सवाल उनसे करना था। आई डोंट नो आयुष जी, आपने इस स्टार शॉट के बारे में सुना, क्योंकि ये इस पे भी काम कर रहे हैं कि वो जो लाइट सेल वाले छोटे छोटे लाइट सेल को भेजना चाह रहे हैं लेजर्स के थ्रू उस तरफ, प्रॉक्सिमा सेंचुरी की तरफ। तो अब उस पर उन्होंने काम शुरू कर दिया या स्टिल इन, मुझे आई उसको थिंक सर्च उसे करना प्लान्ड होता था 2027 का भेजने का, लेकिन ये कोविड अच्छा, की वजह से 1-2 साल टल सकता है। बट इट्स ऑन ट्रैक, मतलब ऐसा नहीं कि खत्म हो गया या आई थिंक वो चल रहा है, उस पे मतलब होल्ड नहीं पड़ा है, तो चल रहा है। ये भी एक बड़ी अचीवमेंट होगी यार, अगर वो ये भी कर दें। मतलब फॉर मी द आइडिया इटसेल्फ इज अ वेरी गुड वन, क्योंकि केमिकल रॉकेट तो जैसे वो करते हैं 50,000 साल लग जाएंगे भाई आपको वहाँ पहुँचते पहुँचते, लेकिन एटलीस्ट ये आपके हमारी लाइफ प्लान में तो शायद ना हो जाए, हो सकता है कि वो अगर वो 20 साल तक वहाँ पहुँच के पिक्चर भेज दे। वो पिक्चर आप अगर तक आने को और 5 साल लगेंगे। हाँ, यस ऑफ कोर्स, लेकिन एटलीस्ट कि आपको भी जो नॉलेज है ना, अभी तो वो इतना दूर है कि आप जितना आप इवन आप उससे भी करो ना, हबल से भी, तो कुछ बहुत अच्छा आप नहीं देख सकते। बट यहाँ पे शाहजी आप ये भी कंसिडर करना है, क्योंकि आप लाइट के 20% स्पीड से ट्रैवल कर रहे हो। जब आप अपने टारगेट के पास तक पहुंचोगे ना, तो आपको स्लो डाउन भी करना है।
वो स्लो डाउन करने का अभी तक हमारे पास कोई मैकेनिज्म या आइडिया नहीं है। हम सिर्फ स्पीड बढ़ा सकते हैं, रोकने का हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। हाँ, बस इन्होंने इसी सब्जेक्ट पे इन्हीं साइंटिस्ट ने, अवी लोब ने एक और तो पेपर भी लिखा था जिसका मैंने भी सवाल भी उनसे किया था कि आपने खुद ही लिखा है कि अगर आप वो जो डस्ट है, इंटरस्टेलर डस्ट है, उसके इवन स्मॉल पार्टिकल्स भी अगर वो हिट करेंगे उस स्पीड पे, वो जो बात में कह भी रहे थे, तो वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। तो क्या ये पॉसिबल है? तो वो कहते हैं हाँ, हमने कैलकुलेट किया कि वो अगर बहुत सारे भेजे तो उनमें से डेफिनेटली काफ़ी सारे जो है सर्वाइव कर लेंगे। लेकिन मेरा ये ख्याल है, आई एम नॉट श्योर कि वो वन वे टिकट वाला ही मेरे ख्याल में हिसाब है। वहाँ उनका ये नहीं है कि उन्होंने जाके उसको वहाँ कहीं स्लो डाउन करना है। उनका ये है कि बस उसको वहाँ भेजना है और वो एक ख़ास डिस्टेंस से वो पिक्चर लेना शुरू कर देंगे उस स्टार सिस्टम की। तो वो भी काफ़ी नज़दीक से अगर जाके पिक्चर भेज देते हैं, जो 4-5 साल में आ जाए, तो इट विल बी ऑल्सो ह्यूज लीप, आप कह लें अंडरस्टैंडिंग ऑफ द, क्या कहना चाहिए, हमारी अंडरस्टैंडिंग जो यूनिवर्स की है, कि अगर वो प्रॉक्सिमा सेंटोरी के बिल्कुल पास जाके तस्वीरें भेज दे और फिर बेशक उस पर जाके हिट कर दे, नो प्रॉब्लम, या कहीं और निकल जाए, जैसे वो हमारे दो वो करते हैं प्रोब्स जो हमने भेजे में, क्या नाम है यार उनका, वॉयजर, तो वो निकल गया, वो जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना काम कर दिया, वो तस्वीरें लेते रहे और जहाँ जहाँ से गुजरते थे वो तस्वीरें भेजते रहते, तो उससे हमारी नॉलेज में काफ़ी इजाफा होता। आई थिंक इट्स लाइक उसी आइडिया को थोड़ा सा अच्छे तरीके से उन्होंने आगे कर दिया। तो देखें, लेकिन मसला वही आता है, जैसे अभी ये कह रहे थे कि यार लोगों को फंडिंग बड़ी मिल जाती है, हमें फंडिंग नहीं मिलती, तो क्या हो सकता है? कंप्लेन कर रहे थे वो उसको। मैं आई अंडरस्टैंड, लेकिन जैसे आयो जी ने कहा वो भी ठीक है, और जो दूसरे लोग हैं, सवाल वही है ना, आपकी प्रायोरिटीज क्या है। आप ये बड़ा मुश्किल हो जाता है आजकल के ज़माने में कि जी आप, अब यहाँ भी लगता है वो ग्रुप, हर जगह ग्रुप बने हुए हैं। आयो जी, आपकी वो जो आपने बुक का रिव्यू किया था, वो हर जगह, इवन कि ये पढ़े लिखे लोग हैं उनमें भी बड़े बड़े ग्रुप बने हुए हैं। जी, तो जी। इस तरह वो ट्राइबलिज्म वाला जो है साइंटिफिक कम्युनिटी में बहुत टॉक्सिक हो गया आजकल। बहुत टॉक्सिक है यार। मैंने अभी इनको 2-3 कमेंट पढ़ के सुना है ना, आई वाज रियली शॉक्ड। मुझे नहीं पता आपने वो सुना था। मैंने इनको इनके इस क्या कहना चाहिए, इस आइडिया पे 2 फिजिसिस्ट के मैंने कमेंट इनको सुनाए। और एक ने तो लिखा, मतलब ऑलमोस्ट लाइक ए शाउटिंग, आप उसको पढ़ेंगे ना, वो कहता है, वो एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है, ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी का, पॉल सटर नाम है उसका। वो कहता है, नो, Oumuamua इज नॉट एन एलियन स्पेसशिप एंड द ऑथर्स ऑफ द पेपर, आई मतलब ये आवी लोब, इंसल्ट ऑनेस्ट साइंटिफिक इंक्वायरी टू इवन सजेस्ट इट। मतलब वो इतना एकदम गुस्से में। ओ, ये क्या हुआ? कोई साहब आ रहे थे, एकदम गायब हो गए। जी, काफ़ी लोग काफ़ी सख्त हैं इनके ऊपर। तो एक हैं जर्मन लेडी सबीन हॉसेनफेल्डर, वो फ्रैंकफर्ट में काम करती, फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी में। वो भी काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं वो इसके ऊपर, कंजर्वेटिव साइंस के ऊपर। बहुत ज्यादा है। मैंने सिर्फ 1-2 ही जमा किए थे, मेरे पास इससे ज्यादा हो सकते थे। मैं नहीं चाहता था मैं कि उनको सुनाऊं। मुझे लगा ट्रिगर जब कर दें। नहीं, पता क्या हुआ, मैं डर रहा था, बल्कि हाइपर एक्टिव ने मुझे कहा भी था कि यार रहने दो। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि भाई वन में, मैं चाहता था वो, मैं उनका वो भी लूँ ना भाई, आप पे क्रिटिसिज्म जो होता है उसके ऊपर आप कैसे रिएक्ट करते हैं। तो मुझे लगा थोड़ा सा, आप जाके वो चेक कीजिएगा इफ आई एम नॉट, मुझे जी, लगा शायद थोड़ा सा कि वो थोड़े से गुस्से में आ गए थे। मतलब उन्होंने कहा हाँ, इनकी हो सकता है। काफ़ी भुक्तभोगी होंगे। हेटेरोडॉक्स लोगों को ये झेलना तो पड़ता है। हाँ, ये बात तो है। और ये जो ग्रुप बंदी है, ये भाई सिर्फ यहाँ नहीं है, पढ़े लिखे लोगों में भी जो ना, इनका मैं वो सुना रहा था। खैर, एक मिनट, मेरे साथ एक और साहब है, एग्नो। हेलो। हेलो हेलो। जी, कैसे हो? हाँ हाँ, तो वही मैंने उनका सुना। तो वही मैं डिस्कस ये कर रहा था कि स्टीव डैश ने जो अपनी वो बताया था कि नहीं, ये ओमामा जो है ये मतलब एलियन स्पेसशिप नहीं है, ये काइंड ऑफ लाइक प्लूटो काइंड ऑफ जो एक प्लेनेट है, उस उसके तरह ये भी एक
तो वो आपने पढ़ा हुआ है वो चीज? हाँ उसकी हमने मुख्तलिफ हाइपोथेसिस, बाय द वे ये भी एक हाइपोथेसिस है इनका, ये नहीं कहते कि जी ऐसा ही है, वो ये कहते हैं कि ये पॉसिबिलिटीज में एग्जिस्ट करता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। वो हालांकि ओके उन्होंने 2-3 दफा ये कहा भी है कि भाई मेरे ख्याल से ये जो इसका जो बिहेवियर है एमओएमओ का, जिस तरह वो गुजर के क्या है, वो इस तरीके से ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन होता है। लेकिन ये एक ओनली, जिसे कहना है कि वन एंड ओनली एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी एक्सप्लेनेशन है जो कि जो दीगर साइंटिस्ट है उन्होंने इसके ऊपर अच्छा खासा काम करके साइंटिफिक पेपर्स लिखे हैं। अभी जैसे हमने शुरू में आपको एक और भी दिखाया, वो नाइट्रोजन आइस वाला। हाँ ठीक है। चलिए ठीक है, फिर यही है, मैंने कहा कि ये डिस्कस आपने करा है कि नहीं। हाँ, अब अगर आपने लेट ज्वाइन किया तो जब इसको खत्म हो, जब वो अपलोड होगी वीडियोस पे, तो आप उसको जाके देखिए, उन्होंने बड़े डिटेल में इसका जो है ना जवाब दिया है, और जो क्रिटिसिज्म है उसका भी जवाब दिया है, तो उसको आप जाके देखिएगा। ठीक है, उस पेपर की लिंक मैं डाल देता हूँ जो उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है इसके ऊपर, हाँ नाइट्रोजन वाली। वो इसमें देते चैट में इनको। थैंक यू अकमल जी। अच्छा जी, तो अमित तिवारी जी कह रहे हैं, सर थैंक यू वेरी मच फॉर सुपर चैट। मैं सॉरी, आपकी पहले वाली जो थी वो उसमें मैं जल्दी में पकड़े हुए थे सवाल, तो मैं नहीं उसको पोस्ट उसमें फ्रेम करना चाह रहा था उनके सामने। थैंक यू वेरी मच, वो मिस हो गई, मैं माजरत चाहता हूँ आपसे। एक बार तो मुझे एलियन लगता है पता नहीं यार, हम सारे इस तरह तो हम भी सारे एलियन ही लग रहे हैं यार तो नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, इवन के ये एक बड़ा अच्छा एक वो है आपके सामने एग्जाम्पल मौजूद है कि ये जो ग्रुप बंदी होती है, ये साइंस में भी, और बड़ी बड़ी वो, मतलब मेरा ये ख्याल था, मैंने सुना है एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन इतनी सख्त जबान कई दफ़ा मैंने तो इनको सिर्फ दो अभी आयोजी मैंने एक और भी दिखाया था, एक और है बेंजामिन वाइनर के नाम से। वो कहता है कि it is annoying even to talk that what the Avi Loeb promotes theories about alien origin of Oumuamua. वो कह रहा है it forces us, rest of us, to do scientific grunt work of walking back these rumors. कहता है ये साला आके छोड़ देता है, फिर हमारे पीछे लोग पड़ जाते हैं, कहते हैं इसका जवाब दो। तो it was brutal. I mean, to be honest with you, I don't want to be in his scientific shoes at that time. लेकिन इसकी हिम्मत है, I mean, एक बात है मानने वाली कि इसकी स्ट्रेटजी जो है वो एटलीस्ट अच्छी है। He got a lot of attention. अगर आप जाके इंटरनेट पे इसको सर्च करेंगे ना, यूट्यूब पे आप इसको सर्च करें, इस आदमी को, आपको ये मतलब 2017 के बाद से तो इसके आपको लिटरली 1000 से ज़्यादा इंटरव्यू नजर आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मसला वो ये ना कि सिर्फ इंटरेस्ट होना और फिर उसमें फिर सब्सटेंस भी होना चाहिए, वो एक डिफरेंट चीज़ है। तो आई एम स्टिल ओपन माइंडेड इन दिस सेंस कि मैं इस बारे में तो मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल हूँ उस सेंस में कि ये जैसे ये सजेस्ट करते हैं आवी लोब की जी मिलीमीटर या उससे लेस देन थिक, ये एक बड़ी अजीब सी मुझे बात लगती है, क्योंकि इतनी थिक आइटम्स जो है वो ट्रैवलिंग कर रही है अगर स्पेस में रिलेटिवली स्पीकिंग, और इतने लंबे अरसे तक, और फिर खुद ही ये इसका अपना एक पेपर है कि वो इंटरस्टेलर जो वो डस्ट है या मीटियर्स है, तो इतना पतला एक ऑब्जेक्ट ये खुद कह रहा है, और ओके उसने आखिर में एक्सप्लेनेशन दी कि नहीं वो इतनी इसकी स्पीड ज़्यादा नहीं है, लेकिन आई वाज सेइंग कि वो ये कहते हैं कि ये बड़ा शाइनी ऑब्जेक्ट था। मेरा आर्गूमेंट ये कि अगर वो शाइनी ऑब्जेक्ट भी है, तो अगर वो ट्रैवल भी कर रहा है स्पेस में इतना लंबे अरसे, तो हो सकता है वो इतनी डस्ट कलेक्ट कर ले कि उसकी जो शाइनिंग है ना वो ख़त्म हो जाए। तो थोड़ा सा मुझे उसमें लगता है कि इसमें हाइपोथेसिस में थोड़ी सी है, लेकिन ऑफ कोर्स इट्स नॉट परफेक्ट। बट शाह जी, मैं तो ये मानता हूँ कि वो को थोड़ी कम फिगर भी नहीं है वो। मैं वही कह रहा था ना, वो ही हैज वर्कड विद स्टीफन हॉकिंग,
उनके साथ काम किया है, कोर्स ठीक है। एंड यहाँ से आने से पहले भी ब्लैक होल इनिशिएटिव का फाउंडिंग डायरेक्टर रहे ये, ठीक है। एंड ये इंस्टेंट ओथ मिल जी कह रहे थे ना, वो स्टार शॉट जो भी है उसका भी कमेटी में चेयर करते हैं, तो ये कोई कम पोटेंशियल वाला आदमी नहीं है। नहीं इसको छोटी मोटी पॉपुलैरिटी गेन करके इसको थोड़ी आना है, वो फर्क नहीं पड़ता ये आदमी को। ये बेसिकली इनकी जो प्रोफाइल है, आप देखोगे जो टीम इवन नोबेल प्राइज के लिए भी नॉमिनेट हो गई थी, वो टीम के साथ इन्होंने काम किया, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता ये उनकी आइडिया है। हाँ, वो पॉपुलर हो गई है, बट इससे पहले भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे चीजें कही है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के बारे में एंड अदर थिंग्स, तो उतनी ही कंट्रोवर्शियल हो सकते थे। तो आयु जी, आपका अगर बिल्कुल आपसे पूछा जाए, आपके ख्याल से वो क्या हो सकता है, वो आप क्या कहेंगे? जी, तो मैं वही अप्लाई करता हूँ कि क्या ज़्यादा चांसेस है किस चीज़ के होने के, ऑकम्स रेजर वाले में। तो अभी तो मैं इसमें कंजर्वेटिव रहूँगा और यही कहूँगा कि वो इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है, लेकिन एलियन ऑब्जेक्ट नहीं है। उतनी लीप नहीं लूँगा मैं बिना और एविडेंस के। इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट तक तो मैं जा सकता हूँ कि पर्सियस आर्म से आया है, 400-500 मिलियन ईयर पहले उसका ओरिजिन था और वहाँ से आया है, यानी किसी ऐसे सोलर सिस्टम पे जो डेवलप हो रहा था, वहाँ पे नेपच्यूनियन स्टाइल कोई प्लैनेट है, उसने इसको फेंक दिया वहाँ से बाहर और वहाँ से ही आया है। उसी तरह का मेकअप है, इसलिए उसका नाइट्रोजन आइस वाला, तो वहाँ से आया है। तो वो जो आपको इसकी जो ये कैरेक्टरिस्टिक है, जब ये एग्जिट कर रहा था सोलर सिस्टम से तो इसकी स्पीड बढ़ गई, तो आप ये कह रहे हैं कि वो जो हीट से तो वो इसलिए हीट हम नहीं पकड़ सके कि वो बहुत कोल्ड था? नहीं, नाइट्रोजन को हमारे इंफ्रारेड टेलीस्कोप से पकड़ना बहुत मुश्किल है। करंटली हमारी लिमिट 2 वॉट तक की है। इंफ्रारेड 2 वॉट पर मीटर करके कुछ मेजर है, उतना पकड़ सकता है। नाइट्रोजन उससे नीचे आता है, तो उसको इंफ्रारेड टेलीस्कोप में पकड़ना बहुत मुश्किल है नाइट्रोजन को। इसीलिए इसको दिक्कत हो रही थी लोगों को कि किस कैटेगरी में डालें। कॉमेट में शुरू में कॉमेट में डालें कि एस्ट्रॉइड में डालें, फिर बाद में इसको ल्यूमिनेसेंस की बेसिस पे और उसकी ट्रैजेक्टरी वगैरह देख के इसको उसमें डाला गया, एस्ट्रॉइड की कैटेगरी में। तो वही कह रहा था मैं पॉइंट। हाँ, लेकिन ये कि मेरे ख्याल में शायद इसका जो आर्गुमेंट है ना, वो शायद इसी पे भी बेस करता है कि एक तो ये इसकी स्पीड बढ़ गई थी जी, और दूसरा इसके पीछे कोई उन्होंने लॉस नहीं देखा, या एटलीस्ट उसको उन्होंने नोटिस नहीं किया ऑब्जर्वेशंस में। जी, तो वो ये अज्यूम कर रहे हैं आवी लोब साहब कि चूंकि हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि इसने कोई अपना मास लॉस किया है एवेपोरेशन से या हीट लॉस हुआ है, तो अगर उसकी स्पीड बढ़ी है, तब भी उसकी स्पीड बढ़ गई है, तो भी ये हो सकता है कि शायद ये एक सोलर सेल टाइप का हो, क्योंकि वो सोलर सेल टाइप के ऑब्जेक्ट्स को आप कह सकते हैं कि वो रेडिएशन को जमा कर लेंगे, तो वो उससे एनर्जी से अपनी स्पीड उनकी बढ़ सकती है। जी, वो समझ सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि जाते हुए इसको देखा गया था, आते हुए नहीं देखा गया था इसका मास वगैरह, तो वो इशू है। ध्यान उसके बाद तभी दिया गया था, जाते हुए ही। अच्छा, नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि जब ये एंटर हो रहा था उस वक्त इसको नहीं देखा गया था? बस वो कर लिया था इन्होंने, स्पॉट कर लिया था, लेकिन ध्यान पूरी दुनिया का मेजरमेंट वगैरह सारा नहीं नहीं नहीं, स्पॉट भी नहीं किया था। वो क्रॉस होने टाइम पे जब वो ट्रैजेक्टरी टर्न कर रहा था, वो टाइम पे डिटेक्ट किए गए थे उसको। तो जब तक वो आया, वो जब तक वो ट्रैजेक्टरी स्टार्ट नहीं किया, उनको अजीब लगा ही नहीं। ये कुछ वो सोच रहे थे कि ये कोई सोलर सिस्टम का ही एस्ट्रॉइड होगा, बट वो जब टर्न लेना स्टार्ट किया तो उनको कुछ अजीब लगा, ये ऐसा क्यों मुड़ रहा है। एंड फिर जब उसको ऑब्जर्व किया तो पता लगा कि ये एक स्ट्रेट लाइन में आया हुआ है एंड अब डाइवर्शन लेके कुछ और डायरेक्शन में जा रहा है। जो वेगा स्टार आप बात कर रहे हैं ना, तो वो डायरेक्शन से आके अभी दूसरा डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन तब तक सवाल ये भी है कि अगर आप टाइम में पीछे जाओ और इसी ट्रैजेक्टरी पे आप पीछे जाओ, तो वो जो वेगा का कहते हैं ना, स्टार वेगा का, वो उस जमाने में वहाँ हमारे स्काई पे नहीं होती थी जहाँ आज है, क्योंकि हमारी जो अर्थ की है ना, क्या करेक्ट, व्हाट आर यू सेइंग इज करेक्ट। वो एक और थर्ड किस्म की मूवमेंट भी है, क्या कहते हैं यार उसको, एक्सिस की जो वो टिल्ट, हमारा एक्सिस का जो टिल्ट है वो भी थोड़ा सा वो क्या कहते हैं उसको, टम्बलिंग किस्म का है, तो वो अपनी जगह बदलता रहता है। तो आपको वो जो स्टार सिस्टम आज जिस जगह नजर आते हैं, वो 25 या 26 हजार साल बाद
वो दूसरी जगह पे नजर आएंगे या नहीं नजर आएंगे। तो आई थिंक उन्होंने इससे कैलकुलेट किया, तो वो ये भी एक है, उसके अंदर मिस्ट्री है कि कॉन्स्टलेशन जिस जगह से आया तो शायद वो वहां नहीं थी उस टाइम पे। तो हाँ, ये बात ठीक है, लेकिन इसमें काफी चेंज है। हमारे साथ स्टॉर्म पायलट जी भी है, उनको भी वेलकम कहते हैं जी। हाय, स्टॉर्म कैसे हैं आप शाह जी? कैसे हैं सबको? आदाब जी, ठीक ठाक, आप सुनाए। यार मैं आपकी स्ट्रीम रियली सुनना चाहता था। बिलीव मी, मैं ऑन करके सोता रहा हूँ, फिर उठता हूँ, फिर सुनता हूँ, फिर सो जाता हूँ। मैं उसको दोबारा फिर सुनूंगा और से दोबारा। हाँ, मैं कोशिश तो करूंगा उस पार्ट को मैं एक सेपरेट वीडियो में बना के ना उसको अपलोड कर दूं। अच्छा, ये मेन स्ट्रीम ये क्या यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं या क्या है? ये कोई कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट वगैरह तो नहीं है, आउटसाइडर? नहीं 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 नहीं, आप इनकी प्रोफाइल जाके चेक करें। ही इज अ PhD, और इन्होंने यही 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 एक बहुत अच्छा आपका सवाल है। देखिए, यही होता है कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इवन इन साइंटिफिक कम्युनिटी के। ये जो आजकल होता है ना, पोलराइजेशन जो है ना बहुत ज़्यादा हो गई है हमारी दुनिया में। तो कई दफ़ा जो नए आइडियाज़ भी होते हैं ना, तो उसके ऊपर जो है झगड़ा बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सेल्फ प्रमोट भी करना चाहते हैं, नया आइडिया लेकर आते हैं तो वो एक स्टार बन जाते हैं, यू नो। हाँ, वैसे ये क्रिटिसिज्म इन पे हुआ है, क्योंकि अभी इन्होंने रिसेंटली एक बुक लिखी है, वैसे 8 बुक लिखी है इन्होंने। तो कुछ लोगों ने इनको कहा कि यार ये कोई एक काइंड ऑफ PR स्कीम है कि वो अपनी किताब जो है उसको बेचना चाह रहे हैं। और well, मैं दिलों के हाल नहीं जानता, मैं लोगों को उनकी फेस वैल्यू पे लेता हूँ, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि नो, ही इज अ जेन्युइन साइंटिस्ट। ऐसा नहीं है कि वो कोई कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट, नो, ऐसा नहीं है। आपकी स्ट्रीम को थोड़ा सा दूसरा रुख, एक मैं सवाल करना चाहता हूँ आपसे, मेरे जहन में आया अभी थोड़ी देर पहले। कोई बात मेरा मूड नहीं था वैसे बात करने का इस सब्जेक्ट के ऊपर, लेकिन एक सवाल आया आपसे, चूंकि आप इजी गोइंग पर्सन है, आई नो यू कैन, गुस्सा नहीं होते हैं आप। तो बात यह है कि पानी कहाँ पे बना? जवाब दीजिए। इसका हमारी जमीन की बात कर रहे हैं? नहीं, पानी बना कहाँ पे? स्पेस पे बना है। स्पेस में बना ना सब कुछ, ये हाइड्रोजन और ये जो एलिमेंट मौजूद है। ओके, मिनरल्स कहाँ पे बने? स्पेस में। सब स्पेस में, या सब स्पेस में बना, और पूरी मिलियंस एंड बिलियंस हेवनली बॉडीज को छोड़ के सब जमीन पे आया। नहीं। सुने तो सही। उनका सवाल सुन ले। हाँ, सवाल सुन ले। मिनरल जमीन पे आए, पानी जमीन पे आया, सब कुछ छोड़ करके। उसके अलावा इवोल्यूशन को देखें तो जो हायरार्की है स्पीशीज की, उसमें भी ह्यूमन बीइंग टॉप पे हैं। हम हर चीज से फायदा उठा सकते हैं। तो फिर ये आपको इसमें ऑब्जेक्टिविटी, परमेश्वर, गॉड की नजर नहीं आ रही कि ओनली अस, वाई अर्थ? आप फिर भी खुदा को नहीं मानते हो, कैसे लोग हो आप? हाँ, ये सर, मुझे लग रहा है कि आप सरकास्टिकली बात कर रहे हो। हाँ, लेकिन अच्छा सवाल है। If I'm wrong, please tell me. मैं देखे, लोग मुझे बहुत स्ट्रीम में बहुत गलत समझते हैं। मैं जेन्युइन क्वेश्चन लेकर आता हूँ और प्रो और एंटी दोनों साइड से लेकर आता हूँ। मकसद ये होता है कि उसका कोई बेहतर लोगों को सुनने को मिले, उसका अच्छा जवाब मिले। ये सवालात लोगों के जहन में होते हैं। हाँ, ये बिल्कुल। तो आप इन सवालों को, जब एक आदमी सवाल करता है तो उसके ऊपर प्रोपेगेंडा न किया कीजिए कि ये लगता है ये बंदा फलां, ये बंदा फलां। पर्सनल क्यों हो जाते हैं लोग? पता नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। नहीं सर, पर्सनल थोड़ी तो होता है। तो वो जो है ना, वो अगर वो समझने की कोशिश करते हैं तो हम उनको समझाते हैं, बट वो तो आप अभी मैंने आप सवाल रेज किया है, शाह जी, आप इसका जवाब दीजिए, मुझे सेटिस्फाई कीजिए आप। मुझे तो लगता है कि इसमें ऑब्जेक्टिविटी है। नहीं है, मैं आपको जवाब देता हूँ। मैं ये समझता हूँ, एक मिनट हाइपर जी, आप थोड़ी सी माइक अपना थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लीजिए, मुझे थोड़ा सा इसमें वो आ रहा है। जब आप बात करें तो फिर बेशक ऑन कर लीजिएगा। श्योर, यस। ओके। नहीं, ये सवाल बिल्कुल एक उठता है, ये बहुत दफा उठा है। ये वो एक आपने आर्गुमेंट सुना होगा, फाइन ट्यूनिंग आर्गुमेंट, कि जो यूनिवर्स है ये इस तरह फाइन ट्यून्ड हुई है कि वो लाइफ को मुमकिन बनाती है, जिंदगी को मुमकिन बनाती है। और ये भी एक आर्गुमेंट दिया जाता है कि अगर जिंदगी ना होती तो फिर ये जो इस कायनात को देखने वाला कौन होता है? ये सारी कायनात इतनी बड़ी फजूल में होती अगर कोई ना बैठा होता जमीन पे या और जगह पे, जो इसको देख के वंडर करता, वाह यार क्या जबरदस्त इतनी बड़ी चीज बनाई है। तो ये सारा एक फजूल में एक वो होती
क्या कहते हैं एक्सरसाइज, कि अगर वो कोई जिंदगी अगर ना होती। और ये आर्गुमेंट दिया जाता है कि बास यूनिवर्सल कांस्टेंट है जो जिसके ऊपर कायनात खड़ी है, जिन चीज़ों पे वो इतने फाइन ट्यून्ड है, अभी मेरे ज़हन में उसका नाम नहीं आ रहा, वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, उसको जब उन्होंने मेजर किया साइंटिस्ट ने, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब एक्सट्रीमली फाइनली ट्यून्ड, कि जो अगर वैसी ना होती इस कांस्टेंट की वैल्यू, तो ज़िंदगी मुमकिन नहीं थी। तो ये एक सवाल है जो कहा जाता है, लेकिन उसके जवाब में भी जो है ये भी कहा जाता है कि हम जो इंसान है ना, ख़ास तौर पे वो थोड़े से सेल्फ सेंट्रिक है, वो ये समझते हैं कि वो कुछ इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो फिर बाज़ औक़ात किसी बड़े प्रॉब्लम की बहुत छोटी सी या सिंपल सी एक्सप्लेनेशन ढूंढने लग जाते हैं। वो ये कहते हैं कि यार इतनी अगर यूनिवर्स कॉम्प्लेक्स है, तो वो बजाय उसके कॉजेज़ को ढूंढने के या उस पर रिसर्च करने के, वो एक सिंपल एक्सप्लेनेशन ढूंढ लेते हैं कि यार अगर इतनी बड़ी यूनिवर्स इतनी कॉम्प्लेक्स है, तो उसको बनाने वाला भी कोई इतना ही कॉम्प्लेक्स चीज़ होगी। तो ये सवाल एक आ जाता है लोगों के ज़हन में कि हो सकता है हमारा ऐसा कोई क्रिएटर हो इतना ताकतवर जिसने हमें बनाया हो। मसला ये है कि इसकी नहीं, ये तो एक आर्गुमेंट है ना, फाइन ट्यूनिंग की एक आर्गुमेंट है। ओके, मैंने सुन रखी है, आई नो दैट। ओके, लेकिन ये जो मैंने अभी आपसे बात की है, इसके अलावा आप देखें दूसरे प्लैनेट डेड पड़े हैं, उसमें बैलेंस नहीं है चीजों का। तो अब देखिए, हम एक एक्सट्रीम में चले जाते हैं, एक एक्सट्रीम से निकलते हैं तो दूसरी एक्सट्रीम में चले जाते हैं। चलिए आप मुझे अपना वो बताएं, अपना हाइपोथेसिस जो है वो दे, आपके ख्याल से क्या? अच्छा, मेरे ज़हन में क्या है, अगर आप सुनिए, मुझे ये मालूम है कि जितने ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स हैं ये मैन मेड हैं, एंड वी नो देयर इज अ प्रूफ, हर किस्म का प्रूफ है। आर्कियोलॉजी के हवाले से देखें, म्यूजियम भरे पड़े हैं, कवानीन लोगों ने बनाए, इवॉल्व हुए, हमने वो देख रखा है। रिलीजन्स को आप स्टडी करें तो आपको पता चलेगा कि लोगों की ऑब्जर्वेशन थी, और दे वर ट्राइंग लाइक अस, एग्जैक्टली लाइक अस, दे वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये फिनोमेना क्या है। हर एक ने अपनी अपनी तौजी दी है। ओके, नाउ व्हाट इट इज, मैं जैसे सोचता हूँ, ओके, मैं ये तुषार है इसके साथ बहुत एग्री करता हूँ, मैं इनको भी सुनता हूँ, मैं जो मेरे भी व्यू वही है। हम क्यों नहीं ट्राई कर सकते कि दुनिया को समझें? ओके, ये क्या है कि रिलीजन और नो रिलीजन, ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं। उन लोगों ने अपने तय कोशिश की दुनिया को समझने के लिए। अगले दिन मैंने वो लिखा कि ये जो यूनिवर्स है द मदर ऑफ ऑल रिडल्स, मेरे ज़हन में ख्याल आया, मैंने किसी फिलोसोफर को नहीं पढ़ा। तो what I'm saying is, why can't we rediscover for ourselves? Okay, जो मुझे लगता है, जो मेरा दिल कहता है, okay, partly आप कह सकते हो कि it is ये जो लेगेसी है because I was religious, अब मेरे ज़हन से वो नहीं निकल रहा। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अगर कोई गॉड हो, उसने हमें अकल दी है, और अगर कोई हिसाब किताब हो, कर्मा हो, जो भी हो, उसने हमें अकल दे रखी है कि हम चीजों को राइटली करें, रॉन्ग नहीं करें। लेकिन स्टॉम भाई, कोई गलत काम कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर मॉरल कंपस भी होता है, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट रिलीजन को छोड़ दीजिए, हमें पता होता है कि हम राइट और रॉन्ग कर रहे हैं। ओके, तो मेरा ये है कि मैंने गॉड को डिस नहीं किया। मैं ये भी नहीं कहता कि गॉड की टांग है, हंसता है, रिवेंज लेता है, फलां करता है, सिर्फ गॉड हमारा है, उनका नहीं है, मैं उसको नहीं मानता। लेकिन हम उसको क्यों नहीं समझ सकते कि हमारे पास अकल तो है ना, कि देयर इज समथिंग अबाउट इट। जैसे मैंने अभी सोने, चांदी और मिनरल्स की दूसरी जहां पे बने और सब जमीन पर आए, तो ये सब कोइंसिडेंस हैं क्या? मतलब कुछ तो है यार। लेकिन स्टॉम भाई, कुछ जो है वो एक प्रोसेस चल रहा है फिजिक्स के लॉस के तहत, यूनिवर्स के लॉस के तहत, हमें सारे वो नहीं पता। आप जो कह रहे हैं उसके अंदर हमें इनविजिबल कोई आके बाहर से उसके ऊपर कुछ क्या कहते हैं, जब हमने यूनिवर्स को डिस्कवर करना, तो हमने वो हाइपोथेसिस रखना कि कोई कर रहा है, हमें पता है कि ये चीज हो रही है, हमें वो डिस्कवर करना है उसका प्रोसेस क्या है। तो फॉर एग्जांपल, जो ये सितारे बन रहे हैं या टूट रहे हैं, जो जमीन पे आए हैं, हमें बिग बैंग के बाद से अब तक वी कैन सी हाउ इट, ये कैसे हुआ है। अब कुछ सवाल हमें नहीं पता अभी भी, लेकिन आप उसको डिस्कवर कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये नहीं देखना कि देयर इज एन आउटसाइड फोर्स डूइंग दैट फॉर यू। लेकिन हमें नजर आ रहा है कि जो हमारे सामने हो रहा है, हमें पता नहीं है।
दाले जी हेलो वेलकम। एक मिनट में इनका पता। सर आप ये कैसा क्लेम कर सकते हो कि सिर्फ पृथ्वी पे ही जीवन है? हमने तो दूसरे जगह खोजना ही अभी स्टार्ट किया है। शायद हो सकता है यूरोपा जिसको हम प्रोस्पेक्ट मानते हैं वहां पे हो सकता है, टाइटन के ऊपर हो सकता है। ठीक है, तो अब हम जिस तरह से हमारी साइंस अभी प्रोफेसर लोब भी वही बात कह के गए कि वीनस के 50 किलोमीटर ऊपर जो है वो फॉस्फेट्स मिले हैं, जो सिंबॉलिकली हमको ये दर्शाती है कि ये लाइफ के बाई प्रोडक्ट्स ही है। ठीक है, अब तो नासा भी वहां पे 2 सैटेलाइट्स भेजने की बात कर रहे हैं, तो हम अभी भी श्योर नहीं है कि हम यूनिक है इस सोलर सिस्टम में। अब आप इस बात को लेकर चलो कि सोलर सिस्टम इज अ वेरी वेरी स्मॉल, शायद 1/बिलियन से भी छोटा एक पॉइंट है इस मिल्की वे में। उतना ज्यादा तारे हैं एंड उतनी तारों के पास उतना प्लैनेट्स है। ठीक है, तो आप जब आप स्टैटिस्टिकली भी देखोगे, प्रोबेबिलिटी करके भी देखोगे ना, तो बहुत ज्यादा चांस हो जाता है कि ये यूनिवर्स में हर जगह पे लाइफ है। ठीक है, अब हम उसको डिस्कवर नहीं किए, हमारी गलती है। एंड अगर हमें दूसरी जगह पे कोई भी एविडेंस मिल जाता है, या तो एग्जिस्टिंग लाइफ का, या तो डेवलपिंग लाइफ का, या तो फॉसिल लाइफ का, ये तीनों में से कौन सा भी छोटा भी एविडेंस मिल जाता है ना, तो अब आप ये मान लो कि हाँ ये पेल ब्लू स्टार। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। लाइक और मेरा कहने का मतलब फॉस्फीन गैस का मकसद ये कि लाइक लाइफ एग्जिस्टेड। फॉस्फीन गैस उसके बगैर अभी तक है वो नहीं आती, pH 3 नहीं बनता। लाइक उसके होने के लिए लाइफ होना ऑलमोस्ट कहते हैं कि इज नेसेसरी। नहीं, मैं very high इनकी इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये जेन्युइन क्वेश्चन है कि जो लोग उठाते हैं कि मतलब अभी हमारी जो नॉलेज है बहुत कम है। मैं तो कह सकता हूँ कि भाई हो सकता है कि हम जब आगे ज़्यादा शुरू करें, रिसर्च करना शुरू करें, तो हमें 2 हो सकता है चीज़ें मिल जाए। हमें हो सकता है दुनिया इस कायनात में और जगह पर लाइफ मिल जाए, हो सकता है हमारी जैसी लाइफ हो, और ये भी हो सकता है कि हमें कोई ऐसे एविडेंस भी मिल जाए जो हम कहें कि यार ये बिल्कुल जो है ना, आप इसको नहीं, डिनाई नहीं कर सकते। आप फ्यूचरिस्टिक There should be- आप फ्यूचरिस्टिक बात कर रहे हो। आज जो हमारे पास एविडेंस है, हम मर के चले जाएंगे। ओके, द पीपल जो फ्यूचर में आएंगे दे विल डिसाइड। ओके, आज जो हमारे पास एविडेंस है, आज क्या है? आज मैं तो जब इवोल्यूशन को देखता हूँ, जब बिग बैंग को देखता हूँ, चीजों के बनने को देखता हूँ, डीएनए को देखता हूँ, तो मैं इसको सिर्फ चांसेस नहीं मान सकता यार। आई कांट बिलीव दैट दीस आर चांसेस। पहली बात है, आप कहते हैं चांस है, दूसरे के लाइफ जो इवॉल्व होना तो चांस है। आपकी बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज में एक प्रोबेबिलिटी तो बन सकती है। नंबर 1, गोल्डीलॉक जोन कितने प्लैनेट्स हैं? It is too far-fetched. No, it's not true because there's Goldilocks planets. There are billions now, millions, hundreds of millions of even हमारे मिल्की वे के अंदर है। हाँ डाली, इसके अलावा भी जो है ना लाइफ कुड देखे, हम जब जिंदगी की बात कर रहे थे तो हम कई दफा जो है ना सेल्फ सेंट्रिक होकर ये कहते हैं बायोलॉजिकल लाइफ की बात कर रहे हैं। लाइफ कुड बी एनीथिंग, मतलब वो हो सकता है किसी भी फॉर्म में हो, बल्कि बड़े इंटरेस्टिंग आइडियाज हैं। ये भी हो सकता है कि जो स्टार्स है उनकी सरफेस के ऊपर लाइफ, मतलब नॉन फिजिकल फॉर्म में कहीं लाइफ एग्जिस्ट करती हो। मतलब अभी तो हमने देखना शुरू किया, हमें बिल्कुल नहीं पता। हम समझते कि कार्बन बेस्ड लाइफ होगी, ये कार्बन बेस्ड लाइफ होगी, तो हम हर एक चीज को वो कार्बन बेस्ड समझ लगे। हो सकता है वो कार्बन बेस ही ना हो, वो सिलिकॉन बेस हो। मेरा ख्याल हमारा ह्यूमन से भी अगला एवोल्यूशन सिलिकॉन बेस्ड लाइफ है मेरे ख्याल में कार्बन बेस्ड लाइफ। हाँ, ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। लेकिन मैं स्टॉर्म पायलट से ये कहना चाहूंगा कि अभी जो अब मुझे जो लगता है, आप मुझसे अगर मेरा जाती वो पूछेंगे, मेरा नहीं ख्याल, मुझे नहीं लगता कि जी ये वो जो एक्सप्लेनेशन दी जाती है इस फाइन ट्यून की, वो कि जी वो फाइनल एक्सप्लेनेशन है और उसको मान के कह के यार इसमें कुछ चांस लग रहा है, वो हो सकता है हमें ऐसा लगता हो। और ये भी हो सकता है कि वो एक एक्सप्लेनेशन हो बिलियंस ऑफ डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस की, जिसको हमने अभी पता ही नहीं किया, जिसका हमें पता ही नहीं है। बिल्कुल। तो उस बेस पे हम ये नहीं कह सकते कि जी आज चूंकि हमें ये फाइन ट्यून लग रहा है, या हमें लग रहा है कि यार इतने चांस पे नहीं हो सकता, तो वो मेरे ख्याल में उस मामले में हमारी नॉलेज जो अभी थोड़ी सी लिमिटेड है। हमें ब्लैक मैटर का नहीं पता जी, हमें ब्लैक मैटर का हमें नहीं पता कि व्हाई इज यूनिवर्स एक्सपेंडिंग सो फास्ट। हमें तो कुछ भी नहीं अभी पता, टिप ऑफ द आइसबर्ग मेरे ख्याल में पता है अभी।
We have लेकिन just started. लेकिन मैं जब हाँ हम ये लेकिन बोलते हैं ना कि हमको इतना पता है, ये सिर्फ लास्ट 200 इयर्स में हमने खोज निकाला है। उससे या पहले तो हमको ये भी पता नहीं था कि ये दुनिया जो है हीलियोसेंट्रिक है और जियोसेंट्रिक है। कितने लोगों की जानें चली गई ये सिर्फ इतनी सिंपल मॉडल को देने में कि सारे प्लैनेट्स है ना वो सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं। ठीक है, तो वो 200-300 इयर्स पहले तो वो भी पता नहीं था। एंड यहाँ पे ना स्टॉर्म पैलेट जी, एक मैं पेपर आपको दिखा रहा हूँ, ये एग्जैक्टली जो रुस्तम शाह जी ने बात किया था ना, वो यही टॉपिक को डिस्कस कर रहा है कि स्टार के अंदर भी क्या लाइफ हो सकती है। हाँ, हमको पता है कि हमारी डीएनए जो होती है वो कुछ इस तरह से होती है, वो ऑर्गेनिक मटेरियल यानी कार्बन के चीजों से बनी होती है। ये स्टार में टिक नहीं पाता, बट यहाँ पे ये पेपर ये सजेस्ट करता है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स जो होते हैं उसके यूज करके सेम इसका फंक्शन जो भी है ना, इसको रेप्लिकेट किया जा सकता है। अब हमको ये पॉसिबिलिटी भी कंसिडर करके जाना पड़ेगा कि क्या तारों के अंदर भी जीवन है। अब ये जो चीज मैं बोल रहा हूँ वो दिमाग में हजम भी नहीं होगा। एक तारा इतना पावरफुल तारा, इतना मिलियंस ऑफ डिग्रीज हॉट जो तारा है, उसके अंदर जीवन कैसे रह सकता है। बट वो हर मुमकिन चीजों पे हमने कोशिश कर रहे हैं। ओके, मैं ये पेपर जो है ना चैट में डाल दूंगा, जिनको इंटरेस्ट है वो प्लीज पढ़िए। बट ओवरऑल मैं ये कह रहा हूँ कि हमको बहुत से सारे चीजें नहीं पता है, बट हम क्योंकि हमको नहीं पता है, हम कोई भगवान को उसको तान दे, ये लो भाई हमको नहीं पता इसलिए तुम रेस्पॉन्सिबल हो, ये हमारी कोच के लिए एक फुल स्टॉप हो जाएगी। आयु जी, आपका इसके ऊपर क्या है मिस्टर पायलट साहब के सवाल के ऊपर? जी, तो देखिए जुरासिक पार्क वाले लोगों ने कहा था लाइफ फाइंड्स अ वे। हम लोगों ने अपने ही प्लेनेट के अंदर में ये देखा है, जहाँ एक्सपेक्ट नहीं करते जियोथर्मल वेंट्स में सल्फर यूज करने वाले बैक्टीरिया हैं, वो मस्त पनप रहे हैं। ऑक्सीजन यूज नहीं करते वो लोग, सल्फर यूज करते हैं, वो मिल जाते हैं। तो एक्सट्रीमोफाइल्स मिलते हैं, तो वो ये चांस बताता है कि आपको लाइफ ऐसी जगहों पे भी मिल सकती है जहाँ आपको उम्मीद नहीं हो। ऑब्वियसली वो हमारे जैसी नहीं होगी, पर देयर वुड बी लाइफ के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जब तक एक्सट्रीमोफाइल्स नहीं मिले थे तब तक लोग यही कहते थे कि सरफेस और उसके आसपास में जहाँ पे सनलाइट आसानी से जाता है वहाँ तक ही हमें लाइफ मिलेगी। लेकिन अब जहाँ सनलाइट नहीं जाता है, समुद्र के बहुत नीचे इतना प्रेशर होता है कि चीज़ें पचक जाती हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे भी हम लोगों को लाइफ मिल जाती है, तो हमारे प्लेनेट के अंदर में ही। तो अब चांसेस बढ़ जाते हैं। एडेप्टेशन की जो ये है पावर बहुत ज़्यादा है, और हम लोग है ना इसको अक्सर एक अलग तरीके से ले लेते हैं इवोल्यूशन को, कि म्यूटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, रैंडम चांस के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं। ब्रेट वाइंस्टाइन इसको अलग तरीके से डिस्कस करते हैं। वो इसको डिस्कस करते हैं डिजाइन प्रॉब्लम इन अ स्पेस। तो ऐसे सारे के सारे इवोल्यूशनरी निशेस वो एक स्पेस बना देते हैं। लेट्स से एक क्यूब बना दिया उन्होंने, उसके अंदर में जब इवोल्यूशन होते जाता है तो अलग अलग स्पीशीज जो है वो ऑटोमेटिकली फैलना चालू कर देती हैं उस क्यूब के हिस्से को भरने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्पीसी क्यूब के बीच के ब्लॉक के अंदर में है तो वो अपने बढ़ने के लिए लेफ्ट कॉर्नर का हिस्सा जाके फैलेगी वहां पे, क्योंकि उसको फैलना है तो वो ढूंढना चालू कर, एक्सप्लोरेशन चालू कर देती है वो स्पीशीज। और इस तरह से अगर आप देखोगे डिजाइन प्रॉब्लम के तरीके से, तब आप इसको और आसानी से समझ सकते हो। रैंडम चांस की से हटके आप डिजाइन प्रॉब्लम की तरह देखें। अब इसका डिजाइन प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं है कि कोई डिजाइनर है बैठ के वो ट्वीक कर रहा है, उसको इस तरह से देखिए अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे, वहां पे लाइफ पहुंच जाएगी किसी न किसी तरीके से घूम के। तो आप उस तरीके से देख सकते हैं इसको, सिर्फ और सिर्फ रैंडम चांस ना कह के डिजाइन प्रॉब्लम समझ सकते हैं, क्योंकि लाइफ है बड़ी अपॉर्चुनिस्टिक। तो आप लोग सब मुतमइन हो कि गॉड इज डेड? गॉड नहीं, इज कोई डेड, गॉड इज डेड के लिए होना चाहिए। गॉड को हम लोग सोशल कॉन्स्ट्रक्ट की तरह ले सकते हैं, जो सोसाइटीज को रन करने के लिए काफी यूजफुल है। ओके, हमारा आर्गुमेंट ये मेरा है ये ख्याल है कि स्टॉर्म भाई, इट्स जस्ट वन ऑफ, जिस तरह रुस्तम भाई ने कहा था, जस्ट वन ऑफ द मेनी प्रोबेबिलिस्टिक एक्सप्लेनेशंस। आप इट्स जस्ट वन ऑफ हंड्रेड्स, सो दैट्स ऑल। लेकिन मैं अपने तो ये सोचता हूँ कि अगर मुझे कोई कोर्ट में खड़ा कर दे तो अगर मुझसे ये सवाल पूछा जाए कि सब कुछ खुद हो रहा है या इसके पीछे मकसदियत है, तो मैं टू बी ऑनेस्ट विद यू आई कैन नॉट। मुझे बताइए फिर मकसदियत क्या है कि जब सितारे इतने बनते हैं
और टूटते हैं, और आप हर चीज आप यूनिवर्स के अंदर देखो इवेंचुअली हाँ तो बनते हैं, उसका कोई मकसद है जिंदगी को आगे, तो मकसद क्या है? तो चीजों को आगे बढ़ाते हैं ना, वो बनते क्या हैं बात है, और चीजों को, इवेंचुअली ये यूनिवर्स कोल्ड डेड हो जाएगा, फिर क्या मकसद होगा? वो तो पार्ट ऑफ डिजाइन है ना, वो तो चीज part of एक design बनी हुई है। तो फिर आप फिर नहीं मेरा नहीं नहीं, एक मानना। मिनट, नहीं नहीं, मैं अगर ये सारे ना होते, अगर सारे ना होते तो हम ना होते, जमीन ना ठीक है, होती। दैट्स अ फेयर पॉइंट, मगर अगर आप वैसे भी देखो जिस तरह ये चीजें चल रही हैं, इट्स सो हैपहैजर्ड, इसके अंदर कोई डिजाइन लगता, जिस तरह हैफ लाइफ है, जिंदगियां जिस तरह आई हैं, इवन ऑन दिस प्लेनेट, हमारे प्लेनेट पे कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन हुई, फिर वो खत्म हो, जुरासिक पीरियड स्टार्ट हुआ, उसके क्या मकसद था? वो 200 मिलियन स्टेजेस साल के थी, लिए? नहीं, मुझे वो पता नहीं क्या मकसद था, वो तो 50 में वो साल डायनासोर, इब्तदाई स्टेजेस थी, वो इब्तदाई स्टेजेस थी। ताकि आप लोग ये तेल इस्तेमाल कर सकें। जी, मैंने कहा ताकि तेल इस्तेमाल कर सकें आज के दिन में, वो जो डायनासोर और कैम्ब्रियन एवोल्यूशन वाले अगर देखें, अगर यही अर्थ को एक मकसद था, नहीं आप उनका आएगा, तेल इस्तेमाल करें। अगर अर्थ को एक ना आते और ये सारी चेंजेस जमीन पर ना होती तो हमको मिनरल्स नहीं मिलने थे। अर्थ को की वजह से मिनरल्स मिले, क्योंकि दे पुशेस आउट ऑल द मिनरल्स डीप जो कोर में होते हैं। अच्छा point- अच्छा, हाँ जी। अगर मैं ये कह दूं कि ये मिनरल्स जो भी है ना, इसलिए है क्योंकि भगवान ने वो अर्थ को एक लाया था, तो क्या आप मानोगे? नहीं, हम भगवान को चूंकि पुराने प्रीवियस लोगों की एक्सप्लेनेशन को लेकर चल रहे हैं, इसलिए हम नैरो माइंडेड हो जाते हैं। तो हम भी एग्जैक्टली वही चीज कह रहे हैं। आपके पास एक्सप्लेनेशन है तो आप अल्टरनेटिव्स को क्यों चूज करना चाहते हो? आप यहाँ पे जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आपको जस्टिफाई कर रहा है जो भी चीजों को, है ना, उन पे आप टिके रहिए। वो आप अननेसेसरली दूसरों को क्रेडिट क्यों दोगे? हमारी मेरा क्वेश्चन ये है। कॉन्शियसनेस, अब मैं हमारी कॉन्शियसनेस इस चीज की डिमांड करती है कि हम सोचें। ओके, वी आर नॉट एनिमल्स लाइक, ओके, एनिमल्स जिस को भी तरह के कॉन्शियसनेस होता है सर। लेकिन एनिमल्स के लेकिन पास भी लेकिन कॉन्शियसनेस होता है। लेकिन स्टॉम भाई, पॉइंट ये कि आपकी जो कॉन्शियसनेस डिमांड कर रही है, और आपको जो अभी सवाल मिल रहे हैं, हम बेसिकली क्या पता हम उसी तरह जिस तरह आज से 2000 साल पहले वो जो कहते थे कि वो जो कहते थे सूरज एक है, गॉड है, तो बेसिकली अभी क्या पता हम उसी फेस पर हो टू द इवेंचुअल ट्रुथ। yes, the people are trying to figure it out what this phenomena is. So, but why do you need to keep the God part in? Just you can discover it by itself, by the universe. No, you can call it prime mover, you can call it anything, I don't care. I'm अच्छा, not saying the God. हाँ नहीं, इसो भाई साहब, मेरा ख्याल है आयो जी, आपने इससे मिलते जुलते जो फिनोमेना है कि हम इस तरह के सवाल क्यों करते हैं, अभी आपने जो रिसेंट बुक्स उसमें की थी, उसमें कहीं ऐसा था ना कि ये पार्ट ऑफ आवर एवोल्यूशन, जिसने हमें जो है थोड़ा सा सर्वाइवेबिलिटी में हेल्प की थी। आई डोंट नो इफ आई एम मिक्सिंग दीज टू थिंग्स टुगेदर के जी वो चैप्टर था ऑन रिलीजन, 11th चैप्टर था जोनाथन हाइट की बुक का। तो हाँ, उसमें सभी लोगों के एक्सप्लेनेशन टुवर्ड्स हम लोग रिलीजियसली क्यों सोचते हैं, यानी जो इनका सवाल था कि हम लोग इस तरह के हायर क्वेश्चन क्यों उठाते हैं कि वेयर डू वी कम फ्रॉम, इस तरह के सवाल क्यों उठाते हैं। तो उसके लिए तीन ग्रुप्स का ओपिनियन लिया गया, 3 ग्रुप्स का उन्होंने आर्ग्यूमेंट समराइज किया डॉक्टर हाइट ने। तो उसमें पहला था न्यू एथिस्ट ग्रुप का। उनका आर्ग्यूमेंट था कि हम लोग जो पैटर्न सीकिंग करते हैं, जैसे कि उसमें सर्वाइवेबिलिटी का ही सबसे बड़ा रोल है। फॉर एग्जांपल, आप अंधेरे में जा रहे हो, आपको रस्सी लटकी हुई दिखेगी तो आप उसको सांप समझ के भाग जाओगे। इस तरह के दिमाग में बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, और वो मॉड्यूल्स आपकी सर्वाइवेबिलिटी के लिए बने हैं, वो प्रिसाइसनेस के लिए नहीं बने। इसीलिए आपको आसमान में जो बादल हैं उसके अंदर आपको चेहरे दिख जाते हैं। तो वो हमारे एक तरह से फेस का पैटर्न रिकॉग्निशन, दिमाग का सॉफ्टवेयर, उसका काम है। लेकिन वो है जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, वो उसका एक बाय प्रोडक्ट निकल गया, यानी उसका मिसफायरिंग जो होने लग गई, वो जब हम लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिटी में डिस्कस करने लग गए, तो वो चीजें हम लोगों को रिलीजन की तरफ थोड़ी सी ले जाती गई। पैटर्न सीकिंग बिहेवियर हमारा जब हम लोग कम्युनिकेट करते गए तो रिलीजन की तरफ बढ़ता गया। और फिर उन्होंने दूसरा आर्गुमेंट दिया था कि ये एक तरह से पैरासाइट है जो आपके ब्रेन को हाईजैक कर लेता है। ये नियो एथिस्ट का आर्गुमेंट था। दूसरे लोगों का आर्गुमेंट ये था कि उनका कहना ये था कि आया वैसे ही है कि हमारा जो सर्वाइवल मैकेनिज्म है कि पैटर्न सीकिंग का, जो हमें थ्रेट और बेनिफिट की तरफ डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है, वो मैकेनिज्म से ही आया ही ये वाला चीज। लेकिन उसका सोसाइटी को बनाने में एक बहुत बड़ा यानी हम लोग को कलेक्टिवली एज अ सोसाइटी बनने में उसका बहुत बड़ा योगदान है, कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि
ग्रुप के अंदर में एक प्रॉब्लम होती है फ्री राइडर वाली, मुफ्तखोरी की समस्या, उसको दूर करने में वो हेल्प करता है। और तीसरा आर्गुमेंट ये था, वो सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से था। उसका पहला अजम्पशन भी यही था, यानी पहला पॉइंट भी यही था कि वो आया तो मिसफायरिंग से ही है ये मॉड्यूल, जो पैटर्न सीकिंग मैकेनिज्म है, लेकिन उसका इवोल्यूशन हुआ है और उससे जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड जो आया है वो एक मे पोल्स की तरह है, जो सोसाइटी को एक तरह से एक पोल के अराउंड डांस करने में, टेपेस्ट्री के अराउंड डांस करने में हेल्प करता है, और उससे सोसाइटी डेवलप होती है। 3 आर्गुमेंट थे और सभी का पहला पॉइंट यही था, जो ये कह रहे हैं कि हम लोग कहाँ से आए हैं और उसका कोई एट्रीब्यूटर है, वो पैटर्न सीकिंग बिहेवियर, वो तीनों ने ये माना है कि वो हमारे सर्वाइवल का मैकेनिज्म है। लेकिन आयो भाई इसमें एक और भी चीज है, मुझे लगता है कि एक चीज है डेथ, दैट इज, मुझे लगता है उसका बहुत क्रूशियल रोल है हमारे इस चीज के अंदर। अच्छा, अपना शाहजी इन्हीं की बात जो उन्होंने की उस पर थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा। ये पैटर्न सीकिंग दो धारी तलवार है। ये पैटर्न सीकिंग ही हमें कंप्लीट पिक्चर बनाने पे मजबूर करती है ना। हम ये जानना चाहते हैं कि वाई, ये सब क्यों है, ठीक है। तो ये हमारे बाय डिफॉल्ट हमारे अंदर ही वो चीज है, चाहे एवोल्यूशन ने पैदा की, जिसने पैदा की। आप ये इसको इस तरह भी देखें कि ये हो सकता है ये आपकी जो सर्वाइवल, आपकी जो इंस्टिंक्ट ऑफ सर्वाइवल है ना, ये उसकी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है जो आपको नजर आ रही है। ये जो हम सवाल करते हैं ना, कई दफा उसके पीछे अंडरलाइन मैसेज हमारा होता है, हम अपनी सर्वाइवेबिलिटी को देख रहे होते हैं एज ए स्पीसी भी और एज ए इंडिविजुअल भी। तो ये जो अभी इन्होंने बात की, इन्होंने आयोजी ने, ये अगर आप इसको जाके वो इन्होंने एक जगह पे चैनल पे इसको बड़ा डिटेल में डिस्क्राइब किया। हमें पहले बेसिक को देखना है कि ये सवाल आया हमारे अंदर क्यों पैदा हो रहा है, इसके पीछे कोई डिजाइन की वजह है या ये एक नेचुरल प्रोसेस था। हमारे ख्याल से, जो मुझे लगता है, मेरा जाती ख्याल ये कि जब हम इवॉल्व हो रहे थे तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग हमारे अंदर जो इंस्टिंक्ट थी वो हमें या तमाम स्पीसीज में वो होती है सर्वाइवल की। इंसानों के अंदर इसकी ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में डेवलप हुई है। एक तो हमारा फिजिकल सर्वाइवल है, लेकिन हम उसको साथ साथ हमने उसको फिजिकल से हट के अपनी, अब जैसे समझ ली कि हमारी जो इमोशनल या मैं कॉन्शियस का लफ्ज ही लाना चाहता, मैं समझ ली कि हमारी एक इमोशनल नीड है। प्लीज मत लाओ प्लीज। हाँ, वो हम इस स्पीसीज की तरह ये करना चाहते थे कि यार अगर हम मर जाएंगे या खत्म हो जाएंगे, इज दैट इट? तो हमारे अंदर कई ये सवाल के छुपा रहा हमारी इंस्टिंक्ट में, और उसकी जब डेवलपमेंट हो रही थी, जब सोसाइटीज बन रही थी, जब ये बायोलॉजी डेवलप कर रही थी, हम इंसानों को इस स्टेज पे ला रही थी जहाँ आज हम है, तो ये उसका एक बाई प्रोडक्ट हो सकता है। इस पे ऑफकोर्स जैसे आयोजी ने कहा, डिफरेंट ऑफ ओपिनियन है, मुख्तलिफ ग्रुप्स है जो इसको मुख्तलिफ तरीके से बयान करते हैं, लेकिन लगता यह है कि एटलीस्ट वो इस बात पे मुत्तफिक है कि इसकी एक बायोलॉजिकल रीजनिंग है जिसका ताल्लुक हमारे सर्वाइवल से है। शाहजी, सर्वाइवल की बात आपसे मैं करूं तो सर्वाइवल इंटेलेक्चुअल बीइंग और सेमी इंटेलेक्चुअल जो हैं स्पीशीज, उनकी हमें समझ आती है कि दिमाग का या कुछ दिमाग का हिस्सा उनके पास होता है, कुछ सेंस होती है। जापान में जब उन्होंने ये जो सिटी का ग्रिड बना रहे थे, ट्रेन का जो बना रहे थे, तो उनको जो इंजीनियर थे उनको कॉम्प्लेक्स, मतलब उनको प्रॉब्लम आ रही थी कि सबसे बेस्ट टाइम सेविंग और एनर्जी सेविंग सोल्यूशन क्या हो सकता है कि पहली ट्रेन कौन से स्टेशन पे जाए और फिर कौन से दूसरे और तीसरे और चौथे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। एक कोई मतलब बैक्टीरिया जरासीम के लेवल का, मतलब बहुत थोड़ी सी उसके पास, कोई इतने ब्रेन वगैरह कुछ नहीं है। आई डोंट नो, आई फॉरगॉट व्हाट इज एग्जैक्टली इट इज। कोई चीज है जो मतलब जिंदा है। सो उन्होंने क्या किया कि इट ईट्स। तो उन्होंने क्या किया कि वो जो ग्रिड उन्होंने बनाना था, उन्होंने वहां पे फूड रख दिया सब जगह पे। तो उन्होंने ये देखकर हैरान हो गए कि जो एक स्पीशी है जिसके पास कोई दिमाग वगैरह कुछ भी नहीं है, वो उसने इस तरीके से पैटर्न बनाया, सबसे बेस्ट पैटर्न, इंसानों से भी बेहतर उसने बनाया, क्योंकि उसको फूड चाहिए था। और वो पहले एक तरफ गया, फिर दूसरे, फिर चौथे, फिर पांचवे, और सबसे बेटर सोल्यूशन जो डिजाइन का था वो उसके अंदर मौजूद था। तो उसके अंदर ये सेंस कहाँ से आई, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब दिमाग नहीं है, तो आप अभी सर्वाइवल की बात कर रहे थे, उसने सर्वाइव करना, उसे फूड चाहिए, लेकिन वो ये सर्वाइवल की जो धुन है उसके अंदर कहाँ से आई है, इसका क्या जवाब होगा?
आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर्वाइवल, आपका सवाल ये भी इस तरह भी समझा जा सकता है कि ये जो सर्वाइवल की इंस्टिंक्ट भी है, ये भी जी कहीं डिजाइन हुई है स्पीसीज के अंदर कि इवन के स्मॉलेस्ट जो अमीबा भी होगा ना, वो छोटा सा, वो भी अगर amoeba, कहीं, yeah, it was like amoeba, yes, yeah. हाँ, तो वो अगर वो गर्मी होगी या उसको, तो वो वहां से मूव करने की कोशिश करेगा, ट्राई टू सर्वाइव। यस, मुझे ये आर्गुमेंट पता है। जो इसका सिंपल आर्गुमेंट वही अगेन है ना, मैं ये कहता हूँ कि जब हमें ये पता चल जाएगा कि इस लाइफ का स्टार्ट कैसे हुआ, वी डोंट नो दैट, ठीक है ना। जब हमें ये पता चल जाएगा कि ये डेवलप कैसे हुई है, आया है कहीं बाहर से आई है, जैसे पैंस्पर्मिया एक है, या यही केमिकल रिएक्शन से इसने डेवलप होना शुरू किया और उसके बाद फिर वो इवॉल्व होनी शुरू हो गई, तब तो हम ये कहेंगे कि ये यार इंस्टिंक्ट क्यों नजर आती है हमें हर स्पीसीज के अंदर कि वो सरवाइव करना चाहता है। हमारे अंदर थोड़ी कॉम्प्लेक्स है क्योंकि हम जो है वो हायर लेवल पे आते हैं उसके अंदर, इंटेलिजेंस लेवल पे, लेकिन ये होती सब में है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमारे पास अभी इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है कि हम उसके ऊपर कोई वो ओपिनियन फॉर्मुलेट कर सके। हाँ, जिस दिन हमें ये पता चल जाएगा कि भाई हमारी जिंदगी इस जमीन पे कैसे फॉर एग्जांपल शुरू हुई, तो शायद थोड़ा सा हमें उसके अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा हमें इससे अवॉइड करना चाहिए, कम से कम इसको इस सेंस में देखना चाहिए कि जो एक्सप्लेनेशन आज हमारे पास है, इट इज वन ऑफ मेनी परहैप्स। अगर वो 10 नहीं है, 15 नहीं हो सकता, 20, 25, 30 हो, लेकिन हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम इसको एक चीज को मान के बैठ जाए, यार मुझे लगता है यहाँ कोई डिजाइन है, अब वो कौन डिजाइन है आई डोंट नो, ठीक है, ये भी एक एक्सप्लेनेशन है, आप मान सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इस सेंस में अगर आप मान के बैठ जाए तो आप अपने आप को एक जगह स्टक कर लेंगे। नहीं मेरे तो ख्याल से अगर आप बेहतर है। डिजाइन बहुत हैवी वर्ड है आपको लगता है, तो पैटर्न तो है ना, हाँ, पैटर्न पैटर्न तो है। पैटर्न हर चीज में है। well you can say कि हाँ जी, जैसे वही बात होगी ना, वो ट्यूनिंग वाली बात है कि इसमें ऐसी, इसको इस तरह ट्यून लगता है, इट अपीयर लोगों को लगती है कि जी ये थोड़ी सी फाइनली ट्यून है, लेकिन इसकी जगह और भी आर्गुमेंट है, मल्टी यूनिवर्स का आर्गुमेंट है कि हो सकता है इसमें कोई खास बात ना हो, अभी हमने, हो सकता है इस जैसी करोड़ों लाखों अरबों और यूनिवर्सेस हो जो थोड़ी सी एक मल्टी दूसरे से मुख्तलिफ हो। देखें, मल्टी यूनिवर्स हो जाने से, इस क्वेश्चन को बड़ा कर देने से कोई वो मसले का हल तो नहीं हो जाता ना, अगर मल्टी यूनिवर्स भी आप कह दें तो। हाँ नहीं, मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं जिस बात पे मैं जोर देता हूँ वो ये कि एट द मोमेंट इन हिस्ट्री, जो आज हम जिस जगह पे खड़े एज ए स्पीसी, हमारे पास इतना डेटा भी मौजूद नहीं है कि हम उसके ऊपर कोई फर्म फॉर्मुलेशन करके गए हाँ यार दैट इज इट। हम ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि इट इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज, जो आप कह रहे हैं ये एक पॉसिबल आउटकम हो सकती है, लेकिन ये कहना कि ये ओनली आउटकम हो सकती है, मैं उसको अवॉइड करता हूँ। और बाय द वे ये इन्होंने आयो जी ने स्टॉर्म पायलट जी प्राइवेट चैट में इसका लिंक दिया हुआ है द राइचस माइंड बुक का, जिसके ऊपर अगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप ये 11 चैप्टर हैं बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया, आप जाके क्लिक करके देखें, अगर आप इसको पढ़ेंगे ना तो आपको कुछ चीज़ों की क्लैरिटी जरूर आएगी। इट विल हेल्प मेक योर पॉइंट इवन शार्पर, या आप उसे कहते हैं और मजीद आप उसके अंदर मजीद आप जान लेकर आ सकते हैं अपने आर्गुमेंट के अंदर। अगर ये जो प्राइवेट चैट में, if I click that now, would it make any difference to my this stream now, or no, it will open as no, ये जो लिंक आपको आ रहा है ना, वो can you put it in the comments? Would you be able to do it in the comments please, so other people can see it as well instead of private chat? यार वो मेरे ख्याल में वो ठहरो मैं इसको देखी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप जाके देखेंगे ना आयोजी से, मैं कहता हूँ उसको वहां भी डाल Okay, what is the title of it? What is the name of it? Just I'll remember it anyway. So द राइचस माइंड। मैंने डाल दिया वो चैट पे, the righteous mind. या वो डाल दिया उन्होंने चैट पे आपके लिए। Thank you. तो इसको मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको प्लीज जरूर पढ़े, ये एक बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है, बहुत सारे सवालों का बहुत अच्छा इससे जवाब मिल जाता है। सारे सवालों का जवाब भी मिलेगा ऑफ कोर्स, लेकिन आप महसूस करेंगे आपकी जो आज की अंडरस्टैंडिंग है जिस पे आप बात कर रहे हैं वैलिड हो सकती है, आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट इनवैलिड, लेकिन जब आप इसको इस लेंस से देखना शुरू करेंगे कि यार इसमें बायोलॉजी का भी कुछ हाथ है, तो आप अपने पॉइंट को मजीद अच्छे तरीके से पेश कर सकते हैं। तो उसलिए तो आप जो चारों लोग हो वो सारे कश्तियां जला बैठे हैं, आर यू सेटिस्फाइड 100%? किस सेंस में? कि there is no God, there is no entity, no one is behind it,
At Are the you moment, 100% confident? Are you 100% confident? All of you, four of you? मैं अपना बता देता हूँ, बाकियों का मुझे भी पता, खुद बताएंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आई डोंट हैव एनी एविडेंस टू एट दिस मोमेंट टू से दैट देयर इज वन. सो मैं इसके साथ जाऊंगा कि भाई मेरे पास तो ऐसा कोई एविडेंस नहीं है. और ये मेरा खुद भी बहुत सब कुछ हो रहा है. मेरा भी यही स्टैंड है. मुझे वी हैव रीजन कि हम यहाँ पे क्यों है, किस लिए है, एंड फ्यूचर क्या हो सकती है, तो हम ये थॉट प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं. एंड जो आपकी क्रिएटर की हाइपोथेसिस जो भी है ना, उसका प्रॉपर एविडेंसेस नहीं मिलता आपको. तो आई टू स्टैंड विथ रुस्तम शाह जी. मैं भी यही मानता हूँ कि देयर इज नो सच एंटिटी. Your argument, you're not emotionally driven or किसी और चीज से, it's just pure intellect. Your आपका जो conclusion है, it is based on your intellect and the information you have so far. If you are asked, अगर आप कहीं भी आपको पूछे जाए तो आप ये तो नहीं कहोगे कि मुझे नहीं पता, I don't know, maybe, this and that. Are you confident? भाई आप हमसे एक मिनट, आयो जी वो कुछ कहते पहले उनका भी ले ले, फिर मैं उसका जवाब दूंगा. हाँ जी, तो मैं जो कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटर गॉड है उसके ऊपर तो मैं नहीं हूँ. मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है वो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से ज़्यादा मैटर करेगी. मैं ये कह सकता हूँ कि ह्यूमन सिविलाइजेशन के एवोल्यूशन में और सोसाइटीज़ को कोहेसिव बनाने में द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड ने बहुत यूटिलिटी रखी है. तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ह्यूमन मोरालिटी के एवोल्यूशन में कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड ने बहुत मेजर रोल प्ले किया है. इसको मैं एक्नॉलेज ज़रूर करूँगा यूटिलिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से. नहीं, आपने कैसे कहा मोरालिटी तो इवॉल्व हुई है ना. पुराने ट्राइब्स जो थे, पुराने जो लोग थे, आइडिया ऑफ गॉड भी इवॉल्व ही हुआ है. ये है ना राइचस माइंड, एक बार हमारे साथ आके डिस्कस कर लीजिएगा. हम लोग हर हफ्ते वो राइचस माइंड पे बात करते हैं. वो बहुत अच्छे से हम लोगों ने पूरी बुक में डिस्कस किया है. एक एक पॉइंट को हम लोगों ने डिटेल आउट किया है. यही इसीलिए मैं आपसे, हाँ मैं इसीलिए आपसे, सॉरी आयो जी, आई एम सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ. मैं इसीलिए आपसे ये कह रहा हूँ स्टॉर्म पायलट जी, अगर आप इसको पढ़ेंगे ना तो आपको अंदाजा होगा कि हम लोग कहाँ से आ रहे हैं, या एटलीस्ट हमारी जो पोजीशन है वो भी आपको पता चल जाएगी. आप ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकेंगे और आपको हो सकता है कुछ क्लैरिटी आ जाए. तो ये कई सवाल आपकी जो है ना उसके अंदर वो शामिल हो जाएंगे और आपका जो पॉइंट है वो मजीद शार्प हो जाएगा. तो ये जो भी आपने लिंक दिया ना, इसको प्लीज जरूर पढ़े, ये बहुत अच्छी चीज़ है. ओके, थैंक यू. आप आगे चलें, जरा किसी और को लेना तो आई हैव टू डू समथिंग नाउ, सो आई हैव टू गो. ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. ओके, थैंक यू. थैंक यू सर, नाइस टॉकिंग टू यू. अच्छा जी, तो हमारे साथ हैमर है, फौजी सीरियल है. हैमर में लास्ट टाइम थोड़ा फंस गए थे, मतलब लड़ाई में. थोड़ा यार पहले बहुत अच्छा. मेरे साथ ये मेरा आखिरी पैनल है भाई, इसके बाद फिर वो 3 घंटे हो जाएंगे, तो फिर इसको 3 घंटे पे ख़त्म करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फौजी सीरियल और एंटी नेटलिस्ट जी और हैमर जी आपको वेलकम कहते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप ये शुरू से सुन रहे थे, आपके को कमेंट स्ट्रीम के ऊपर. थैंक यू. सॉरी, बीच में मीटिंग थी उसमें फंसा हुआ था. अभी दोबारा वापस आया था जब ये बुक्स की बात शुरू हुई है. कैन आई गो इन रिवर्स ऑर्डर? अभी जो वो बात कर रहे थे, क्या नाम था? स्टॉर्म पायलट जो कह रहे थे, वो जो गॉड्स के हम शुड वी गिव अप ऑन गॉड और वो दैट काइंड ऑफ थिंग. मेरा कहना ये है कि ये जो अल्लाह है ना, या गॉड है या भगवान है, इट हैज फेल्ड मी, एंड बाय मी आई मीन द होल ह्यूमैनिटी एवरी सिंगल टाइम. जब भी मुझे जरूरत पड़ी है ना, अल्लाह नहीं आया मेरे काम. ना कोई रसूल अल्लाह, ना कुरान पाक, ना कुछ, कोई मेरे काम नहीं आया. एवरीथिंग आई हैड टू डू इट ऑन माय ओन. तो फिर मैं क्यों जाऊं और क्यों उन होल्स को फिल करने की कोशिश करूं कि एक अमीबा भी जो है, जो सनलाइट से भाग रहा है और फूड की तरफ भाग रहा है, उस होल को. एंड ही हैज अ वेरी गुड क्वेश्चन कि जी वो जो कहाँ से आया, वो उसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, एंड वी डोंट नो दैट. बट does that mean that I should fill that gap with a God, with Allah? No, it doesn't make any sense. स्पेशली जब वही अल्लाह हर दफा फेल होता है जब मुझे जरूरत है.
अभी मेरे घर की छत गिरने लगे, मैं अल्लाह को बुलाऊं, अल्लाह कभी नहीं आएगा मेरी मदद के लिए। अभी जल्जला आ जाए और जो है ये दीवार गिर जाए मेरे रूम की मेरे ऊपर, अल्लाह कभी नहीं आएगा। और उसी अल्लाह को मैं उस अमीबा या उस सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का गैप फिल करने की कोशिश करूं, उससे टू मी इट डजंट मेक एनी सेंस। माय 2.5 cents ऑन दैट। लेकिन मैं आपसे एक कहूँगा कि बहुत सारे लोग इस दुनिया के ऐसे हैं जिनको ज़िंदगी का जो मकसद होता है, ज़िंदगी का जो मीनिंग होता है, जो कि इंसानों के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ। तो बहुत सारे लोगों को जब ये पता चलता है कि उनकी ज़िंदगी का मकसद ये है कि उन्हें अल्लाह ने बनाया है और वो आखिरत में अल्लाह के सामने पेश होंगे, वट एवर एवरी रिलीजन हैज़ सम सर्टेन पार्ट्स टू इट, बट बेसिकली उसका क्रक्स यही है कि अल्लाह ने बनाया और वो अल्लाह के सामने, गॉड के सामने आखिर में जाएंगे। तो ये उनको फुलफिल करता है उनकी इस क्वेश्चन को कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ। अदरवाइज व्हाट एल्स वुड यू गिव योरसेल्फ कि ओके व्हाट इज मीनिंग ऑफ लाइफ। अगर आपको समझ आई हो मेरी बात तो आप ठीक है। हाँ सॉरी शाह जी, यू वांट मी टू रिस्पॉन्ड और आप रिस्पॉन्ड करेंगे? नहीं, आप आपसे अगर वो करें तो आप कर लें। बिल्कुल। मैं हाँ छोटा सा लेट मी जंप इन। एंटीनेटली साहब बड़ी अच्छी बात की आपने, और एंड इट डज मेक सेंस, राइट, for that particular segment of the society it does make sense, but as a rational being it does not make sense. You know what I'm trying to say कि yes उनकी सर्वाइवल का बुनियाद इस पे है कि वो इस पे ईमान रखें कि जी एक अल्लाह है और उसने सारी कायनात बनाई और उसने रसूल अल्लाह को भेजा और कुरान पाक भेजा और सब कुछ। But it doesn't really make the world go around. What really makes the world go around are the laws of physics, are the laws of science, are, you know, and those things do not work with the classical God. शायद मैं समझाने में कामयाब हुआ कि नहीं? ओके, बट लेट्स से कि अगर मैं खुद से ये पूछना चाहूँ कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, इसका बेस्ट आंसर क्या दे सकता हूँ मैं खुद को? व्हाट इज योर मीनिंग ऑफ लाइफ? मेरा मीनिंग ऑफ लाइफ इज टू come here, have a great job, which I have a great life, family, बीवी बच्चे, make an impact in the society, and that's pretty much it. और मेरे वो जो अंदर की जो तस्कीन है ना मेरे, उससे वो पूरी हो रही है। ओके, बट ज्यादातर लोगों की नहीं होती, बट अल्टीमेटली I agree with your point. Yes, and by the way, अगर आप और मैं, because you said कि आप rational human being हो, तो अगर आप और मैं डिस्कस करना चाहें तो I can pretty much we will have to reach to the conclusion कि अल्टीमेटली हम सब की लाइफ पॉइंटलेस है और मीनिंगलेस है, and that is a very scary thought. Well, जैसे in आपने the मुझे grand कहा कि scheme आप of things, sorry, the grand schemes of things, मैंने भी एक छोटी सी तस्वीर दिखाई थी, पेल ब्लू डॉट। तो हम तो वैसे इस यूनिवर्स के अंदर नथिंग, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। Excellent point, अगर शाजी। आप इतनी छोटी सी दुनिया जो इतनी बड़ी यूनिवर्स में, तो आप ये कैसे कह सकते हैं इस यूनिवर्सल बेसिस पे कि आपकी कोई वैल्यू है? मैं तो समझता हूँ कि ठीक है, जब आप खुदा की एंट्री कराते हो, एवरीथिंग मेक्स सेंस, लाइक फिर मैं पॉइंटलेस नहीं रहूंगा, देन आई एम बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, यू नो। एंटीनेटली साहब अच्छी बात करी आपने, बट कुछ गड़बड़ है इसमें गड़बड़ यही है कि आपने फिर वो जो एक होल था ना, उसको आपने एक ऐसी एंटिटी से प्लग इन करने की कोशिश की है जो हर दफा फेल होता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो होल जरूर प्लग इन हो जाएगा, लेकिन उसका फेलियर रेट देखें ना आप उस एंटिटी का। हाँ, फॉजिसियल साहब, इसमें एक बात हमें माननी पड़ेगी। देखिए, जब हम ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है, इसने हमारी सोसाइटी के डेवलपमेंट में बहुत हिस्सा डाला है। मतलब हम ये जो हमारी जो ट्राइबलिस्टिक माइंडसेट है और ये जो हमारी एवोल्यूशन है, जब हम एज ए स्पीसीज डेवलप हो रहे थे, इसकी वजह से हमें कई चीज़ों में कंफर्ट मिली, और कई चीज़ों का अगर ये ना होता, फॉर एग्जांपल, तो आई डोंट नो हमारी सोसाइटी आज कहाँ होती। जी वनीता कौर जी, थैंक यू वेरी मच, मैं इस पर नजर रखा हूँ। तो आइए जी, आपने इसको डिस्कस भी किया। अगर लेट्स से अगर वो गॉड का कॉन्सेप्ट ना डेवलप होता सोसाइटी के अंदर, बाकी सारी चीजें वो ही रहती, वेरिएबल वैसी रहती, तो आपके ख्याल से आज क्या होता? सोसाइटी चेंज होती? वेल, मुझे लगता है कि हमें कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड एंटर करवाना ही करवाना था हर हाल में, क्योंकि हमारे अंदर जो
जो इंस्टिंक्ट है ना, ये बहुत स्ट्रांग है कि भाई हम यहाँ कर क्या रहे हैं, यू नो। और फिर मैं बहुत सारे सॉरी लोग, और बहुत सारे लोग जो मोरालिटी ड्राइव करते हैं वो रिलीजन से ड्राइव करते हैं और खुदा पे यकीन रखने से ड्राइव करते हैं। ज्यादातर इस वजह से मोरालिटी ड्राइव नहीं करते कि उनके दिल के अंदर प्यार घूम रहा है और वो कह रहे हैं चलो कोई बात नहीं, हम दूसरों के ख्याल रखते हैं। ऑल्दो कि वो भी एक सेल्फिश एक्ट बड़ा खूबसूरत है, क्योंकि अगर मैं किसी की हेल्प करता हूँ तो इनफैक्ट मुझे खुद को अच्छा फील होता है। यू कैन गो दैट, यू कैन टेक दैट पाथ, बट मैं ये कहूंगा कि खुदा की जरूरत है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्या खुदा एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन टू, कि क्या मैं खुदा के ऊपर यकीन रख लूं कि वो है या नहीं है। क्योंकि हम पहुंच तो वैसे भी नहीं सकते। अब आप और मैं रॉकेट लेकर पहुंच जाए ऊपर के, चलो खुदा का हाथ पकड़ते हैं या खुदा को ढूंढते हैं, खुदा का कोई निशान ढूंढते हैं, हम कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे, यू नो। तो ये जो मुसलमान आते हैं, काफी मर्तबा मैंने उनको देखा है, वो डिबेट में जाते हैं कि हम जाएंगे प्राइमरी मूवर के सबूत से जाएंगे या किसी भी और तरह से जाएंगे। आई थिंक उनको इस डिबेट में ही नहीं पढ़ना चाहिए, बाय द वे, कि खुदा को हम साबित कर सकते हैं, बिकॉज खुदा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आपको साबित करने की जरूरत है। और फिर खुदा भी तो डिफरेंट टाइप्स के हैं। क्रिश्चियंस का अपना खुदा है। मैं तकरीर ज्यादा लंबी करूं, बट द पॉइंट इज मैं खुद नहीं यकीन करता खुदा के ऊपर, बट मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इट डज हेल्प a lot of people, a lot of हाँ चले आइए जी, मैं आपको सवाल मैंने आपसे पूछा, अगर वो ना होता जी या जी ऐसा मुमकिन था भी, जिस तरह की हमारी एवोल्यूशन है कि हम ये डेवलप ना करते, मतलब ये मस्ट था कि ऐसा होता हमारी एवोल्यूशन में, या देयर वाज अ चांस कि जी शायद इसके अलावा भी कुछ हो सकता था। अब ये इसमें थोड़ा सा ना सर्वाइवर बायस आ जाता है, क्योंकि हम लोग उस पाथवे से आए हैं, तो इसलिए हमें वो पाथवे ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखेगा, हाँ मेकिंग आर गॉड्स वाला। लेकिन 3 चीज़ें मैं थोड़ा सा गॉड्स के एवोल्यूशन के बारे में बता देता हूँ। तो जब हम लोग हंटर गैदरर्स थे, तो हमारे गॉड्स जो थे वो शामनिस्टिक थे, नेचर वर्शिपिंग करते थे। वो वाले गॉड्स जो थे वो कप्रिशियस थे, यानी कि आप शिकार करने गए, आपको शिकार मिल गया तो गॉड अच्छा है, यानी गॉड आज मुझसे खुश है। अगर आज मैं शिकार करने गया और मुझ पे बिजली गिर गई, तो आज गॉड मुझसे नाखुश है, लेकिन उसका कुछ किया नहीं जा सकता है, राइट। तो वो कप्रिशियस गॉड है, वो शामनिस्टिक गॉड है। लेकिन वो भी ट्राइब्स को एक साथ लाने में हेल्प करता है, क्योंकि उसका एविडेंस हमें आज भी मिलता है। जितने भी ट्राइब्स रहते हैं उनके गॉड्स रहते हैं, तो उसके आसपास वो सर्कल में डांस करते हैं वगैरह वगैरह। और सर्कल में डांस करना एक मेजर सोशल कोहेसिव बॉन्डिंग होती है, एक्सरसाइज। फिर उसके बाद हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं टाइमलाइन में, तो हम लोग उससे हंटर गैदरर से पास्टोरलिस्ट होने लग जाते हैं, यानी कि जानवरों को लेके चरवाने वाले मैदानों में, अफ्रीका और यूरोप के मैदानों में। तो वहाँ पे हमें पास्टोरलिस्ट गॉड मिल जाते हैं, जिनमें से हम यीशु वगैरह को ले सकते हैं, यीशु मोहम्मद वगैरह को, यीशु अल्लाह वगैरह को उसमें से ले सकते हैं, पास्टोरलिस्ट गॉड्स। इनका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो सोसाइटी पे जो अननोन का जो खतरा है कि कल मुझे चारा मिलेगा या नहीं, उसको कम से कम करना है। यीशु मेरा गडरिया, वो मुझे रास्ता दिखाएगा, वो वहां से आता है। पास्टोरलिस्ट गॉड इस तरह के होते हैं। और साथ ही साथ इन गॉड्स का एक और फंक्शन है। तो ये गॉड जो हैं, ये कम्युनिटी के इन इन बॉन्डिंग से ज्यादा फोकस करते हैं आउटवर्ड्स जो लोग हैं उनके अगेंस्ट अटैक करना या उस खतरे से बचाना। तो ट्राइब्स जो है पुराने ज़माने में बहुत खतरा होता था कि दूसरी ट्राइब आएगी, हमारे जानवर छीन के ले जाएगी, तो इसलिए वो दूसरी ट्राइब के ऊपर पहले अटैक कर देते थे। तो इन गॉड्स का ये कैरेक्टरिस्टिक है। आप देखते जा रहे हैं कि ह्यूमन सोसाइटी जैसे जैसे इवॉल्व होती जा रही है, वैसे वैसे गॉड्स का नेचर चेंज होता जा रहा है। अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जब ये लोगों ने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया और ये लोग अब धीरे धीरे सिटीज की तरफ बढ़ने लगे, तो यहाँ पे गॉड्स जो थे वो उनके अंदर फिनेंस आता गया है, और ये जो है ये पेगन गॉड्स आना चालू हो जाते हैं यहाँ पे। जो है सिटी स्टेट्स वगैरह के जो गॉड्स हैं, पास्टोरलिस्ट और ये पैरेलल में चल रहे हैं। तो सिटी गॉड्स जो हैं वो उनके अंदर काफ़ी फिनेंस है। वो एक पर्टिकुलर, कई केसेस में पर्टिकुलर ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर फोकस करके, जैसे गॉड ऑफ ब्यूटी, गॉड ऑफ वेल्थ, इस तरह के ऊपर फोकस करते हैं ये वाले गॉड्स। और इनका एक और फंक्शन ये हो जाता है कि और ज़्यादा मॉरलिस्टिक हो जाते हैं। तो ये सोसाइटी के अंदर कोहेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने लग जाते हैं, और पर्टिकुलरली ऐसे चीज़ें जो सोसाइटी के कोहेशन को तोड़ती हैं, उनके अगेंस्ट ये बहुत ज़्यादा दंड देते हैं, यानी कि पनिशमेंट देते हैं। मर्डर करो, आप अडल्ट्री करो, फॉल्स विटनेस, ब्रेकिंग ऑफ ओथ, ऐसी चीज़ें जो आपकी सोसाइटी के कोहेशन को ब्रेक करती है, उनके अगेंस्ट ये सीवियर हैं ये वाले गॉड्स।
और ये वाले गॉड्स जो हैं वो कलेक्टिव पनिशमेंट भी देते हैं। ये इनका बहुत बड़ा नेचर है कि अगर आपने सोसाइटी में अडल्ट्री की तो या तो बाढ़ आ जाएगी या प्लेग हो जाएगा, इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी। तो ये पर्टिकुलरली जो ग्रुप्स हैं उनको एक बहुत ज़्यादा पावर देते हैं कि वो कोहेसिव रहें और दूसरे ग्रुप के साथ compete करके आगे बढ़ सकें। तो ये जो देख रहे हैं हम लोग टाइमलाइन के साथ में कैसे-कैसे गॉड्स का इवोल्यूशन होता जाता है। ओके, अनफॉर्चुनेटली मेरी स्ट्रीम का वक्त जो है वो अब ख़त्म हो गया है, 3 घंटे हो चुके हैं। गिवन कि आज जो है पहला घंटा जो है वो आवी लोब साहब के साथ था, प्रोफेसर आवी लोब के साथ, और मैं उनका बहुत मशकूर हूँ। अगेन थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर आवी लोब को हमें टाइम देने के लिए। हेमर जी, आप सर आपसे फाइनल थॉट शुरू करते हुए राउंड अप करके इसको ख़त्म करेंगे। आप अगर कुछ कहना चाहें तो प्लीज़ गो अहेड। कुछ नहीं, आगे बढ़ो। ठीक है, फौजी सीरियल साहब आपके फाइनल थॉट। एक्सीलेंट रिमार्क्स बाय आयो साहब। आयो साहब, अगर मैं इसको समराइज करूं वन लाइनर में, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो आपने सारे गॉड्स की डेफिनेशंस और उनकी टाइप्स और कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, ये अगेन दोज आर द गॉड्स जो कि होल्स प्लग इन कर रहे हैं जी, थ्रू वो डिफरेंट। सोशल बॉन्डिंग का फंक्शन कर रहे हैं, सोशल बॉन्डिंग के लिए फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, जी, उसके लिए तो ग्राउंड क्रिएट कर रहे हैं। यस, तो इन अदर वर्ड्स वो जो होल था, आपने एक पर्टिकुलर होल का कहा कि सोशल बॉन्डिंग, तो वो होल उसने प्लग किया, एक और गॉड ने एक डिफरेंट होल प्लग किया, एक और गॉड ने डिफरेंट होल प्लग किया, और मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ अदवार मुख्तलिफ में, टाइम्स ये में। जैसे यस, जो एवोल्यूशन हुई है ना, मुख्तलिफ टाइम्स में। हाँ, जैसे शुरू करेक्ट। के जो गॉड थे वो जैसे वो गैर शुमालिक थे, तो वो भी उसमें एवोल्यूशन हो रही है। लेकिन वो जो कॉन्सेप्ट है वो रहा है क्योंकि उससे हमें सोसाइटी बिल्डिंग में मदद मिली है शुरू में। वो उस सेंस में आप कह सकते हैं कि उसका एक फायदा था। वो उसने हमें ग्रुप बंदी में, सर्वाइवल में थोड़ा सा उसने हमें मदद किया उस कॉन्सेप्ट ने। तो मैं इसको इस तरह समझता हूँ कि जिस तरह जब हम इवॉल्व हो रहे थे ना, तो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे मुख्तलिफ चीज़ों से अपने अपने सर्वाइवल के लिए। तो हो सकता है नेचर हमें ये बाई प्रोडक्ट्स जो है ना वो दे रही हो कि इसको भी ट्राई करो, इसको भी ट्राई करो। तो वी ट्राई डिफरेंट थिंग्स, कुछ ने काम किया, वो चिपक गए, वो रह गए, लाइक ए कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। कुछ हो सकता है हमने अपने एवोल्यूशन में ट्राई की हो चीज़ें जो ना काम की हो, तब हमने उसको छोड़ दिया, तो यार काम नहीं करे। तो इस तरह इसको आप एवोल्यूशनरी पीरियड, आप इसको एक काइंड ऑफ बाई प्रोडक्ट कह सकते हैं एवोल्यूशन की, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की एक बाई प्रोडक्ट कहा जा सकता है रिलीजन को, या आपकी जो ये हायर पावर वाली चीज़ को। तो मैं इसको इस तरह लेता हूँ। उस पर डिफरेंस है, लोग उसको मुख्तलिफ तरीके से देखते हैं, मुख्तलिफ ग्रुप कहता है यार है ठीक है बायोलॉजी का स्कोप, लेकिन आया ये किस हद तक था, जैसे भी उन्होंने पहले बात की थी कि वो नियो एथियस्ट और इस तरह के जो ग्रुप्स है उसके अंदर डिफरेंस है। लेकिन आई थिंक मेजॉरिटी इस बात में एग्जिस्ट एटलीस्ट वो करती है, एक्सेप्ट करती है कि ये एक बायोलॉजिकल एवोल्यूशन का एक बाई प्रोडक्ट हो सकता है। अल्टीमेटली सर आपके फाइनल थॉट। यस सर, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा है जो भी बात हुई है यहाँ पर। और मेरी फाइनल थॉट यही होगी कि इवन दो कि हम एथियस्ट हैं, हमें फिर भी मतलब हम सब नहीं मानते कि खुदा है, बट फिर भी आई थिंक आइडिया ऑफ गॉड अगर चलता भी रहे साथ साथ, जो काफ़ी सारे लोगों का होल फिल कर रहा है, तो चलने देना चाहिए। सो या दैट वुड बी माय लास्ट वर्ड। हाइपर एक्टिव जी। नहीं सर, कुछ नहीं, थैंक यू। तो अच्छा, थैंक यू वेरी मच यार, मैंने आपको हेलो। ज़्यादा मौका नहीं दिया। मैं ज़्यादा ये सोच रहा था कि थोड़ा सा मौका मिलेगा आपको। मेरा अंदाज़ा था शायद हमें 2 घंटे मिल जाएंगे, प्रोफेसर साहब के साथ नहीं हो सका, लेकिन अगेन इट वाज वंडरफुल, और आपने जो हेल्प की उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू फॉर योर हेल्प एंड द क्वेश्चन सर। ऑलवेज अ प्लेजर सर। हाँ जी हैमर हैमर जी। साहब। अरे वो लोबी साहब ने कोई प्रेडिक्शन किया है कि अब आगे क्या है? पास क्या तो चीज़? हो गया, अर्थ से पास तो हो गया ना, आउमा वाला। हाँ वो चला गया। हाँ वो ये तो कहते हैं नहीं, कि अभी इस बार सोलर सिस्टम में है, वो अभी सोलर सिस्टम में है, वो मेरे ख्याल बट में उसमें तेजी से बाहर जा रहा है। हाँ आउट क्लाउड के अंदर ही उसके अंदर है अभी, बट उसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसकी वो बहुत फेंट है और इतना छोटा आप नहीं डिटेक्ट कर सकते। इवन कि बड़ी से बड़ी हबल भी लगा ले तो उसकी रोशनी जो रिफ्लेक्शन है बहुत कम है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट आपको उसको दोबारा कर सके। तो आयु जी आपके सर फाइनल थॉट।
हेलो, मेरी ऑडियो आ रहा है शाह जी? जी अब आ रहा है। हाँ हाँ। आज काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग डिस्कशन था, पर्टिकुलरली ओमोमोआ के ऊपर काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हुई। और इसको मैं कंप्लीट साइंस की फील्ड में तो पॉजिटिव देखता हूँ, क्योंकि अब इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स के ऊपर सबका ध्यान है। सारे के सारे जो टेलीस्कोप्स हैं वो लगे हुए हैं, कहते हैं कि 7 हर साल आ जाते हैं इस तरह के ऑब्जेक्ट्स। तो अब जितने आएंगे उसको अच्छे से देखा जाएगा। तो ये पहला मिस हो गया, कोई बात नहीं, हर साल 7 आते हैं, कोई ना कोई तो पकड़ा जाएगा ही हमें। यस, और इटसेल्फ कि अगर इवन ये एक नाइट्रोजन मीटियर भी है, तो ये भी आई थिंक फर्स्ट टाइम जो हम इस तरह डिटेक्ट किया है या हमने जिसको देखा है, तो इससे हमारी नॉलेज में कलेक्टिवली इजाफा ही हुआ है। तो इस सेंस में तो मैं कहता हूँ, आपसे मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना था। और बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं, तो ये भी उसमें एक एडिशन है। इससे हमें हमारी क्यूरियोसिटी को और जो है वो मौका मिलेगा चीज़ों को जानने का और काम करने का। तो आई थिंक इट्स एज अ पॉजिटिव साइन। अब वो उसके ऊपर डिफरेंस, ऑफ कोर्स वो हर चीज़ में डिफरेंस होता है, वो आपको यहाँ भी नजर आता है चैट में और हमारे डिस्कशन में भी। वो हम छोटे से छोटे लेवल पे, चाहे बड़े से बड़ा, हमने देखा कि इवन के साइंटिस्ट भी है, वो भी ब्रूटली एक दूसरे को जो है ना ट्रोल कर रहे होते हैं। तो it's positive in the sense. So everybody, then thank you very हम much for जितने भी सिविलाइज्ड हो जाए ना जी, शाह जी, हमारे अंदर के जानवर जल्दी नहीं जाते। हम उसी तरह है। हाँ ठीक है, मतलब वो भी, उसने भी हमें हेल्प किया है। मतलब ये जो पंगा लेने वाली, जो चुल करने वाली, इसने हमारी सोसाइटी को कलेक्टिवली बेहतर ही किया है। मतलब यही वो लोग थे जिन्होंने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई और गए, एक्सपेरिमेंट किए, नई नई चीजों को ढूंढा, और उससे हम कलेक्टिवली बेहतर हुए। तो इट्स चुगली का इन भी दिस बहुत बड़ा सर, हर चीज का जो भी फिनोमेना, जो बिहेवियर है ना, उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई फायदा होता है। चाहे आपको ना हो रहा हो, किसी और को हो रहा होता है, लेकिन इट्स हेल्पफुल फॉर ऑल दैट सेंस। तो वंस अगेन आप सबका शुक्रिया। मैं ये कोशिश करूंगा, वो जो पार्ट है आवी लोब के साथ जो हमारा इंटरव्यू, उसको मैं एक सेपरेट वीडियो में काट के डाल दूं, ताकि जो लोग उसको देखना चाहते हैं और उसको ये तो देखें। डिस्क्रिमिनेशन है। कौन सी? अरे अलग पार्ट करके डाल दो। नहीं, वो फिर अच्छा है ना, क्योंकि वो अंग्रेजी में, तो जो इंग्लिश समझते हैं तो फिर वो उसको देख ले। बट अगेन इट वाज अ वेरी गुड शो। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास तो बहुत सारे सवाल थे, लेकिन गुड प्रोफेसर हैड टू गो बिकॉज ऑफ कोर्स ही इज वेरी बिजी पर्सन, बट ही वाज जनरस एंड ग्रेशियस इनफ कि उसने कहा ठीक है यार, आपको, मतलब उसने ये नहीं कहा भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। तो बल्कि वो शुरू में कह रहे थे कि अच्छा है, आप लोगों का ये कहाँ जा रहा है, इंडिया में और पाकिस्तान में? तो मैंने कहा यस। तो कहते हैं अच्छा, मेरा ख्याल में ये शायद मेरा पहला इंटरव्यू है, या मैंने शायद एक आध दफा पहले किसी से इंडिया या पाकिस्तान में दिया। तो ही वाज क्वाइट हैप्पी फॉर दैट। तो थैंक यू और वेरी जो मच रोदन के साथ भी किया है। यार। उसने 1000 से ज्यादा इंटरव्यू किए हैं भाई। जो रोगन के साथ भी किया। मैंने He is a भी period. हाँ मैंने भी 2 क्वेश्चंस लिख के रखे हुए थे, लेकिन वो आई हैड बैक टू बैक मीटिंग्स और फिर वो नहीं, वो एवरीथिंग। अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सके। मैं आई विल ट्राई, मैं राइट करूंगा अब फौरन तो नहीं, कुछ अर्सा दे के, कि अगर वो दोबारा हत्थे चढ़ जाते हैं तो बाकी सवाल जो कहेंगे, मैं कहूंगा भाई मेरे ऑडियंस के बहुत सारे सवाल रह गए, देखो इफ आई गेट लकी, अगर मैं यस, गेट दैट वुड लकी बी रहा तो एक्सीलेंट। यस आई विल हाँ, डेफिनेटली और ट्राई वन मोर टाइम। हमारा थैंक्स उनको ज़रूर भेजिएगा। यस, यस मेरा भी। यस, यस, आई विल एंड राइट थैंक हिम यू एज और IO एंड आज हाइपरएक्टिव, रुस्तम हाईएस्ट शाह, हाईएस्ट गया था एंटीनियलिस्ट, लाइव एवरीबॉडी। व्यू का। थैंक यू सर, थैंक्स टू यू टू। ओके। थैंक यू वेरी मच। तो गुड बाय।